نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب زدنا علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ الحمدللہ آج ہمیں شروع کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر، سورۃ آل عمران چوتھا پارہ۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم بلائی کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو مما تحبون، اس میں سے جو جس سے تم محبت کرتے ہو، یعنی اپنی پیاری چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اس وقت تک تم بھلائی کو نہیں، نیکی کو نہیں، نیکی کی معراج کو نہیں پہنچ سکتے۔ وما تنفقوا من شیء، اور جو بھی تم خرچ کرو کسی چیز میں سے، فإن اللہ بہ علیم، تو اللہ اس کو جانتا ہے، یعنی اس بات کی فکر نہ کرنا کہ شاید کسی کو اگر پتہ نہیں چلا تو اللہ کو نہیں پتا، اللہ کو سب پتا ہے۔ کل الطعام، تمام کھانے کانا تھے، ہلن حلال لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، اللہ مگر ما حرم اسرائیل، مگر جو حرام کیا اولاد یعقوب نے، جو یعقوب نے، علی نفسہ ہی اپنے اوپر، من قبل اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، تورات اترنے سے پہلے، کل اے محبوب فرما دے، فاتو لے آؤ بتورات، تورات لے آؤ، فتلوہا بس اس کو پڑھو، تلاوت کرو، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ فمن افترا، بس کون ہے جس نے باندھا، علی اللہ اوپر اللہ کے، کاذبا جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، یعنی حق ثابت ہونے کے بعد کون ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، فاولئک هم الظالمون، تو ایسے لوگ ظالم ہیں۔ دراصل بنی اسرائیل کے اوپر جو اولاد یعقوب یعنی حضرت یعقوب کے اوپر کچھ چیزیں جو ہیں کہ صحت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے انہوں نے اپنے اوپر حرام جو ہے وہ یعنی اپنے اوپر یعنی وہ نہیں کھاتے تھے اس کو، تو یہی چیز جو ہے انہوں نے بنی اسرائیل چونکہ حجت والی قوم تھی، ہر وقت جھگڑا فساد تلاش کرتی تھی، تو انہوں نے بھی کچھ از خود سے چیزیں حرام کر دی تھی، حالانکہ حرام وہی ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہو، اور حلال نے ہمیشہ حلال ہی رہنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو تورات کو لے آؤ، اگر تم سچے ہو، یعنی کہ تورات اصل میں اللہ کی کتاب تھی اور اس میں کوئی کمی کجی اور کوئی بھی باطل نہیں تھی، لیکن لوگوں نے اس کے اندر آمیزش کر دی۔ کل فرما دیں صدق اللہ، اللہ سچا ہے، اللہ نے سچ فرمایا، فتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس پیروی کرو ملت ابراہیم کی جو باطل سے جدا تھے، یعنی مکمل حنیف ہوتا ہے ہر باطل سے جدا، خالص توحید پرست، وما کانا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول البیت، بے شک پہلا گھر، وضع بنایا گیا، مقرر ہوا، للناس لوگوں کے لیے، للذی ببکہ تھا جو کہ مکہ میں ہے، مبارکن مبارک ہے، وہدن اور ہدایت ہے، للعالمین سارے جہانوں کا، فیہ اس میں آیات بینات، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ مقام ابراہیم، ومن دخلہ کانا آمینہ، اور جو کوئی اس میں داخل ہوتا ہے وہ امن پا جاتا ہے، وللہ اور لوگوں ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے، علی الناس لوگوں پر، حج البیت اس گھر کا طواف کرنا یا حج کرنا، من استطاع جس کو استطاعت ہو، الیہ سبیلا اس راہ چلنے کی، یعنی حج صاحب استطاعت پر فرض ہے، ومن کفرا اور جو کو منکر ہو یعنی کہ انکار کرے، فإن اللہ غنی، تو اللہ بے پرواہ ہے، عن العالمین سارے جہانوں سے، یعنی استطاعت کے باوجود جو لوگ حج نہیں کرتے ان کے لیے لمحہ فکری ہے۔ کل فرما دیجئے، لا یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب، لما تکفرون بآیات اللہ، تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا، واللہ شہید،
اور اللہ گواہ ہے اللہ ما تعملون جو تم کرتے ہو۔ کل فرما دیجیے یا اہل کتاب، اہل کتاب، لما تصدون کیوں روکتے ہو تم عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، من آمنا جو کہ ایمان لائے، تبغونہا عوجا کیا تم ٹیڑھ پن چاہتے ہو، ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء حالانکہ تم اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا اگر تم کہنے پر چلنے لگے من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب کے، یردوکم بعد ایمانکم کافرین تو وہ ایمان لانے کے بعد تمہیں کفر میں لوٹا دیں گے، وکیف تکفرون اور کیوں کر تم کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ تم پر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، وفیکم رسول اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے، ومن یعتصم اور جو کوئی بچ جائے، ومن یعتصم باللہ اور جس نے سہارا لیا اللہ کا، فقط ہدیٰ پس تحقیق وہ راہ پا گیا، الی صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، آمنوا اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو حق کا تقاته جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، یعنی ہمیں سب کو بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہر حال میں شامل رہے اور ہماری زندگی بھی اسلام کی شان کے ساتھ ہو اور ہماری موت بھی ایمان کے ساتھ ہو، کیونکہ فرمایا گیا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی اللہ کے خوف کے اوپر کسی کا خوف غالب نہ کرو اور ہر حال میں یہ یقین رکھو کہ تمہیں تمہارا اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ کہ تم مسلمان کی حالت میں ہی دنیا سے جانا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھو، وَلَا تَفَرَّقُوا اور تفرقے میں نہ پڑو، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اور ذکر کرو یا یاد کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر کی، اذ کنتم اعداء جب تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ تو پس اس نے ڈال دی تمہارے درمیان محبت ڈال دی تمہارے دلوں کے اندر، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا پس تم اس کی نعمت خاص سے بھائی بھائی بن گئے، یعنی عرب کا وہ معاشرہ جو بالکل ہر لحاظ سے تنزل جو تھا، یعنی کہ یوں سمجھ لیں تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوا تھا، کوئی بچنے کی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی رحمت خاص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں مبعوث فرما دیا، تو فرمایا تم جو جانی دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم غار کے، یعنی کہ تم اس وادی کے یا دوزخ کے کنارے کے کھڑے، یعنی اس قدر گمراہ تھے کہ گرے ہی چاہتے تھے دوزخ کی آگ میں، فَأَنْقَذَكُمْ پس بچا لیا تم کو منہا اس سے، کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ اسی طرح اللہ کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ اور تم میں سے ہونی چاہیے ایک جماعت، یدعون الی الخیر جو بلائی کی طرف بلائے، ویامرون بالمعروف اور نیکی کا حکم کرے، وینہون عن المنکر اور یہ کہ بری بات سے منع کیا کرے، اولئک هم المفلحون اور یہی لوگ مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اچھا یہاں بتا دوں کہ یہ جو قرآن کا جیسے درس ہوتا ہے یا مختلف جگہوں پر کوششیں کی جاتی ہیں تو یہ پوری امت یعنی کہ اگر یہ چند لوگ فریضہ کرتے ہیں تو یہ امت کی طرف سے امت کفایہ ہے، تو اگر ایک بستی میں بھی اگر کوئی ایسی محفل ہو رہی ہو جہاں قرآن پڑھایا جا رہا تو وہ بھی پوری بستی کے لیے باعث برکت ہوتا ہے، یہ فرض کفایہ ہے۔ یہاں فرمایا تم ایک جماعت ہونی چاہیے، اگر سب کی اللہ تعالیٰ ڈیوٹی لگا دیں تو پھر ظاہر ہے کہ نظام جو ہے وہ پورا جو ہے وہ تلپٹ ہو جائے، تو اس لیے چند لوگوں کا بھی خاص اس علم کے لیے نکل کھڑے ہونا جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی انڈیویجلی اسلام نہیں پھیلا سکتا، ہم میں سے ہر کوئی جس کو جو بھی آیت معلوم ہو وہ آگے پہنچا دے تو وہ بھی اس اعزاز میں شریک ہو سکتا ہے، لیکن اگر بستی میں سے کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو پوری بستی کے اوپر رحمت ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اور مت ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقہ کیا آپس میں، اختلاف کیا من بعد ما جاءهم البینات اس کے بعد کے کھلی نشانیاں آ گئیں، وَأُولَٰئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور انہی کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ اور جس دن کچھ لوگ جن کے چہرے اجیالے ہوں گے روشن ہوں گے، وَتَسْوَدُّ وجوہ اور کچھ جو ہے استغفر اللہ جن کے منہ سیاہ ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَوَدَّتْ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ
बस वो लोग जिनके मुंह काले होंगे, वजूहुहुम उनके, अकफरतुम बादा ईमानिकुम, क्या तुम ईमान लाकर काफिर हो गए, फज़ूकू अज़ाबल, बस चखो अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, इसके बाद कि तुमने कुफर किया। इससे मुराद यही है कि हर एक के अंदर जौहर हिदायत का मौजूद है, तो हर एक को इस जौहर की तलाश में रहना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम बाय बर्थ मुसलमान हैं, तो हमें इसमें मजीद इजाफा करना चाहिए और काफिरों को कोशिश करनी चाहिए कि वो राह हिदायत की तरफ आए। तो जिस दिन उनको पूछा जाएगा कि तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए, यानी कि तुम्हारे अंदर जौहर मौजूद था, तुमने उसको जाया कर दिया। वअम्मल्लज़ीना यद्दत वजूहुहुम, बस वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, फफी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह की रहमत में होंगे, हम फीहा खालिदून, उसमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह भी हमें इनमें से बनाए। तिलका आयातुल्लाहि नतलूहा अलैका बिलहक, ये अल्लाह की आयतें हैं जो हम तिलावत करते हैं महबूब आप पर हक। वमल्लाहु युरीदु जुल्मन लिल आलमीन, और अल्लाह जहान वालों पर जुल्म नहीं चाहता। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज, और अल्लाह ही के लिए है जो भी आसमानों में है और जो जमीन में है। वइलल्लाहि तुरजाउल उमूर, और उसी की तरफ तमाम उमूर लौटाए जाएंगे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नासी, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो कि पैदा की गई हो, जाहिर की गई हो। किसके लिए? तामुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करती हो, वतनहान कौन सी आयत है आपकी? और बुराई से मना करते हो। वतुमिनूना बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान रखते हो। वलो आमना अहलुल किताब भी, और अगर ईमान ले आते अहले किताब, लकाना खैरन लहुम, तो उनके लिए बेहतर होता। मिनहुमुल मोमिनूना, उनमें से कुछ मुसलमान हैं, व अक्सरुहुमुल फासिकून, और अक्सर उनमें से फासिक हैं। लन यदुर्रकुम इल्ला अज़ा, वो तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सकेंगे मगर यही कि अजन है तो ये है, इसलिए अज़ा, मगर ये कि वो सताएंगे ही। वहीं युकातिलूकुम, और अगर तुमसे लड़े, युवल्लूकुम, तो फेर देंगे तुम्हें अदबार, और अगर वो तुमसे लड़े तो तुम्हारे सामने पीठ फेर लेंगे। सुम्मा ला युनसरून, फिर उनकी मदद नहीं की जाएगी। ज़ुरिबत मसल्लत कर दी गई है अलैहिमुज़ ज़िल्लता, उनके ऊपर जिल्लत, ऐना मा सुकिफू, जहाँ कहीं भी वो जहां भी वो पाए। फरमाया उन पर जमा दी गई है ख्वारी, जहां तुम अमान ना पाएंगे, इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, मगर ये कि अल्लाह की डोर के अलावा, यानी अल्लाह के अलावा कहीं उनको अमान नहीं मिलेगी। वहब्लुम मिनन्नासी, और आदमी लोगों की डोर से। वबाउ बेगज़ब इल्लल्लाह, और वो गज़ब इलाही के सजावार हुए। ज़ुरिबत अलैहिम मस्कना, और उन पर जो है वो जमा दी गई मुफ्ताजी। सालिका, ये क्यों हुआ कि बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, कि वो अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। व यक्तुलून अल अंबिया बिगैरि हक, और बगैर हक अंबिया को कत्ल करते थे। जालिका, ये सजा इसलिए मिली कि बिमा असाओ, कि उन्होंने नाफरमानी की, व कानू यातदून, कि वो थे हद से तजावुज करने वाले। लईसु सवाअन, सब एक जैसे नहीं है। मिन अहले किताब में से, उम्मतुन काइमतुन, एक उम्मत कायम भी है। यतलूना आयातिल्लाह, जो अल्लाह की तिलावत करती है, अल-लैली, रात की घड़ियों में, वहम यसजुदून, और जिनको वो सजदा करते हैं। यानी अहले किताब में से सारे एक जैसे नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो अल्लाह का खौफ रखते हैं और रात की घड़ियों में अल्लाह को। ये याद रखें, ये उस वक्त की बात है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए हैं, तो उसके बाद आज अहले किताब सजदे भी करें, जो भी करें, तो उनका सजदा या उनकी रात का क़याम भी कबूल नहीं है, इसलिए कि उनका दीन सही नहीं है। युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अल्लाह पर ईमान रखते हैं और यौम आखिर पर। यानी पहले अहले किताब थे, अगर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ईमान ले आए तो गोया वो फिर दोहरा अजर पाएंगे। व यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, और भलाई का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं। व युसारिऊन फिल खैरात, और नेक कामों में दौड़ते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग जो हैं सालिहीन में से हैं। वमा यफअलु मिन खैरिन फलन युकफरू, और जो भलाई करे उनका हक न मारा जाएगा। वल्लाहु अलीमुम बिल मुत्तकीन, और अल्लाह को मुत्तकियों का पता है। इन्नल लजीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनिया अनहुम अम्वालुहुम, ना उनको उनके माल कफायत कर सकेंगे, वला औलादुहुम, ना उनकी औलाद उनके काम आएगी। मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के रूबरू, यानी अल्लाह के गजब से कोई चीज उनको नहीं बचा पाएगी। व उलाइका अस्हाबुन नार, यही दोस्ती है, हम फीहा खालिदून, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। मसलु मिसाल मा युनफिकून फी हाज़िल हयातिद दुनिया, मिसाल
जो खर्च करते हैं इस दुनिया के अंदर, कमसली मानिंद मिसाल रीहिन, हवा किसी है फीहा सिर्रुन, जिसमें ठंडक हो, असाबत हरसा, वो एक ऐसी कौम पर आई, कौम इन जालमो, जिसने जुल्म किया हो, अनफुसहम, अपनी जानों पर, फअहलकता फअहलकतहु, बस वो उसको हलाक कर दे। वमा ज़लमहुल्लाहु, और अल्लाह उन पर जुल्म नहीं किया अल्लाह ने, वलाकिन अनफुसहुम यज़लिमून, ये कि वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले थे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तत्तखिज़ू बितानतम मिन दूनिकुम, और राज़दार ना बनाओ किसी को भी, मिन दूनिकुम, यानी फरमाया कि गैरों को, ईमान वालों को छोड़कर गैरों को, यानी अगियार को, काफिरों को अपना दिली राज़दार ना बनाओ। ला यालूनकुम खबाला, वो कोई कमी नहीं करेंगे तुम्हें नुकसान पहुंचाने में, तुम्हारी बुराई में कमी नहीं करेंगे। वद्दू, चाहते हैं दिल से, मा अनितुम, तुम्हें इजा पहुंचे, कद तहकीक बादत दिल बगदाउ, तहकीक पहुंच चुकी, यानी जाहिर हो गई उनकी बोगस, बगदा होता है उनकी यानी बैर दुश्मनी, मिन अफवाहिहिम, उनकी मुंहों से, उनकी बातों से, वमा तुखफी सुदूरुहुम, और जो उनके सीनों में छुपा हुआ है अकबर, वो उनके उससे भी ज्यादा है जो उनकी जुबानों पर है। यानी जो मुसलमान का खैर खा कभी भी नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता। काफिर यहूदी इनसे दोस्ती ना करो, ये हमें हुक्म है। कद बय्यना लकुमुल आयाती, अलबत्ता तहकीक हम खोल कर बयान करते हैं बातें, इन कुन तुम ताके लोग, अगर तुम्हें अकल हो तो। हाँ तुम वही हो, उलाई तुहिब्बूनहुम वला युहिब्बूनकुम, तुम वही हो जो उन्हें चाहते हो और वो तुम्हें नहीं चाहते। वतुमिनून बिल किताबी, हालांकि तुम सब किताब पर ईमान लाते हो, कुल्ले ही सब। व इजा लकूकुम, और जब वो मिलते हैं तुमसे, कौलू आमन्ना, वो कहते हैं हम ईमान लाए। व इजा खलो, और जब अकेले में होते हैं, अज़्दु अलैकुमुल अनामिला, तो गुस्से से तुम्हारे ऊपर उंगलियां काटते हैं, यानी अकेले में तुम पर उंगलियां चबाते हैं, इसका मतलब इतनी उनको दुश्मनी है। मिनल गैज, गुस्से के साथ, कुल फरमा दीजिए, मुंह तो बिगैजिकुम, अपने गजब में ही मर जाओ। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सदूर, अल्लाह सीनों की बातों को खूब जानता है। इन तम सस्कुम हसनतुन, अगर तुम्हें भलाई पहुंचे, तसुकुम, तो उनको बुरा लगती है। व इन तुसिबकुम सय्यातुन, और अगर तुमको बुराई पहुंचे, यफरहु बिहा, तो वो उससे खुश होते हैं। इसमें हमें देखने का मकाम ये है, क्या हमें तो नहीं ऐसा होता कि हमारे किसी मुसलमान बहन भाई को खुशी मिलती है तो हमारे दिल में तो नहीं तंगी आती। ये हमारे देखने की इसमें से सबक है। ठीक है, मोमिन वो है जो मोमिन की खुशी में खुश हो और उसके गम में गमगीन हो जाए। वह इन तस्वीरों, और अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, और परहेजगारी करो, ला यजुर्रकुम कैदुहुम शैया, तो उनका जो मकर है तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। इन्नल्लाह बिमा यअमलून मुहीत, अल्लाह जो है वो सब, बेशक अल्लाह सब काम को घेरे हुए है। वाइज गदौता मिन अहलिका, और ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ये उस वक्त को याद करें जब आप सुबह को अपने दौलत खाना से निकले, तो बुग़ियल मोमिनीना मकाइदा लिल क़िताल, और आप मोमिनीन को जंग में उनकी जगह, उनको मोर्चों की जगह बता रहे थे। वल्लाहु समीउन अलीम, और अल्लाह सुनने वाला व जानने वाला है। ये ग़ज़वा बदर की बात है। इस हमत ताइफातानी मिनकुम, जब तुम में से दो ग्रोहों का इरादा हुआ कि अंतफशला, कि वो नामर्दी कर जाए, यानी जिन्होंने हिम्मत हार दी। वल्लाहु वलियुहुमा, और अल्लाह उनका संभालने वाला है। वअलल्लाहि फलयतवक्कलिल मोमिनून, और ऊपर अल्लाह ही के मोमिनीन को भरोसा करना चाहिए। वलक़द, अलबत्ता तहकीक, नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की बदर में, ग़ज़वा बदर में। व अंतुम अज़िल्लतुन, और तुम बिल्कुल कमजोर थे, बेसरो सामान थे। फत्तकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। इस तक़ूलुल मोमिनीना, और महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप मुसलमानों से फरमा रहे थे, अलई यकफियकुम, क्या काफी नहीं है तुम्हारे लिए, कि अय्युमिद्दकुम रब्बुकुम, कि तुम्हारा रब तुम्हारी मदद करे, बिसलासति आलाफि मिनल मलाइकाति, 3,000 फरिश्तों से, मुनज़लीन, जो उतरे पैदल भी। भला, हाँ क्यों नहीं, इन तस्बिरु, अगर तुम सब्र करो, व तत्तकू, तकवा इख्तियार करो, व यातूकुम मिन फौरिहिम हाजा युमदिदकुम रब्बुकुम बिखमसति आलाफिन, तो और काफिर इस दम तुम पर आ पड़े, व यातूकुम मिन फौरिहिम, और काफिर तुम पर आ जाए, तो ये तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ पहुंचेगा भी। खमसातिन अलाफिन मिनल मलाइकाति मुसव्विमीन, निशान लगे हुए फरिश्ते जो 5,000 है। पहले 3,000 का वादा था, फिर फरमाया कि अगर तुम सब्र करोगे, जमे रहोगे, हिम्मत
कम हिम्मती नहीं करोगे। कितने थे बदर के अंदर? 313, और काफिर हजार से ऊपर थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके दिलों पर सकीना नाज़िल कर दी, और इस तरह अल्लाह ताला ने फरिश्ते फिजिकल उतरे थे उस टाइम, निशान ज़दा थे। और उन्होंने, निशान का मतलब है कि निशान उनके ऊपर लगा हुआ था कि ये जंग में उतरे हुए अल्लाह के लिए, अल्लाह ने इनकी मदद किया। और सहाबा कराम फरमाते हैं कि हम किसी को मारने के लिए आगे बढ़ते तो वो पहले से उसका सर कलम हो गया होता, तो हमें वो बंदा तो नजर ना आता। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने इस तरह मदद की। तो फरमाया, और अगर आज भी मुसलमान सब्र करें, आज भी आप देखें गजा के अंदर ऐसे वाकयात जो हैं वो आते हैं कि अल्लाह ताला की उनके साथ बहुत मदद है। अब इससे ज्यादा मदद क्या है कि उनका एक बच्चा बच्चा जो है वो शहीद होने के लिए तैयार है। वो इतने बेखौफ हो गए हैं, मौत भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भला, हाँ जी, वमा जालल्लाहु, और नहीं किया इसको अल्लाह ने, इल्ला मगर बुशरा लकुम, तुम्हारे लिए खुशखबरी, और ये फतह अल्लाह ने तुम्हारे लिए खुशी का बायस बनाई। वाले तत्माइन्ना कुलूबुकुम बिही, ताकि अल्लाह तुम्हारे दिलों को इनके साथ, इसके साथ इत्मीनान दे दे। वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, और मदद नहीं मगर अल्लाह की तरफ से, अल अजीजुल हकीम, जो गालिब हिकमत वाला है। लियक्ता तरफम मिन अल्लज़ीना कफरू, इसलिए कि एक काफिरों का एक हिस्सा काट दे, और यकबितहुम, या जलील कर दे उनको, फयन कालिबु खाइबीन, और वो नामुराद होकर लौट जाएं। अल्लाह करे कि आज भी अल्लाह ताला गजा के मुसलमानों को मदद अता फरमाए और उनके लिए फरिश्ते उतर जाएं। ईमान वाले तो बेहिस हो गए हैं, अल्लाह ताला खुद ही कोई फरिश्ते नाजिल कर दे उनके लिए। लईसा लका मिनल अमरी शै, ये बात तुम्हारे हाथ में नहीं है। और यतूबु अलैहिम और युअज़्ज़िबुहुम फइन्नहुम ज़ालिमून, या तो उन्हें तौबा की तौफीक दे या उन पर अजाब कायम करे कि वो जालिम है। वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, और जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह का है। यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहे वो अजाब करे और जिसको चाहे वो बख्श दे। वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला ताकुलु रिबा, मत खाओ सूद, अदआफन मुजाफतन, मुजाफतन दुगना चौगना करके। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफलिहून, इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पा जाओ। वत्तकुन नारा, और डरो उस आग से, अल्लाती उइद्दत लिल काफिरीन, जो काफिरों के लिए भड़काई गई है, यानी काफिर के लिए है आग। आज का मोमिन इस बात को क्यों नहीं समझता कि काफिर के लिए आग है। अल्लाह माफ करे, हमारे लिए नहीं है, हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमारे लिए जन्नत है। तो जन्नत में, जब जन्नत हमारा ठिकाना है, जन्नत अल्लाह ने हमारे लिए बनाई है, तो जहन्नम में चंद दिन के हिसाब के लिए भी क्यों जाना है? क्यों ना फिर वाकई ही दीन के अंदर इस कदर हम आगे बढ़ते चले जाएं कि अल्लाह ताला हमें जहन्नम की आग जो है उसकी एक तपश की एक, जो कहते हैं ना, एक पेड़ा भी ना हमारे हमें लगे। वातीउल्लाह व रसूला, और अतात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। वसारिउ इला मगफिरतिन, और दौड़ो अल्लाह की बख्शिश की तरफ, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, व जन्नतिन, उस जन्नत की तरफ भागो, अर्जुहस समावात वल अर्द, जिसका जो इतनी बड़ी है कि जमीन और आसमान उसमें समा जाए। वो इद्दत लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए तैयार की गई है। अल्लाज़ीना युनफिकूना, वो लोग, मुत्तकी कौन? जो खर्च करते हैं, फिस्सर्राई व ज़र्राई, जो खर्च करते हैं खुशी में भी और रंज में भी। वल काज़िमीन अल गैज़ा, और गुस्से को पी जाने वाले हैं। वल आफीना अनिन नास, और लोगों से दरगुजर करने वाले हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह मुहसिनीन को पसंद फरमाता है। वल्लाज़ीना, वो लोग, इज़ा फ़अलू फ़ाहिशातन, जब कोई बेहियाई हो जाती है उनसे, औ ज़लमू अनफुसहुम, जब अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, ज़करुल्लाह, तो फिर अल्लाह का जिक्र करते हैं, फस्तगफरू लिज़ुनूबिहिम, और अपने गुनाहों की बख्शिश तलब करते हैं। वमन यगफिरु ज़ुनूबा इल्लल्लाह, और कौन बख्शेगा गुनाहों को सिवाय अल्लाह के। वलम युसिर्रू अला मा फ़अलू, और इकरार नहीं करते जो वो कुछ करते हैं। वहुम यालमून, और वो जानते हैं। यानी गुनाह हो जाना बड़ी बात नहीं है। गुनाह हो गया तो माफी मांग लेनी चाहिए, तौबा कर लेनी चाहिए, और अकड़ना नहीं चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, शैतान का यही तरीका है। उससे सजदा नहीं उसने किया था, जब उसको बात नहीं समझ आई थी तो वो पूछ लेता या रजू कर लेता, लेकिन वो अकड़ गया था, फिर वो जिद में आके बाकी काम उसने किया था।
जो इतनी गुमराही में चला गया, रांदा दरगाह हो गया, वो जिद की वजह से ही हुआ था। वरना वो तौबा कर लेता तो अल्लाह की तौबा का दरवाजा हर वक्त खुला होता है। यही हमें हुक्म है। उलाइका जज़ाओहुम मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, यही लोग हैं जिनका बदला जो है उनके रब की तरफ से बख्शिश है। व जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, और जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, खालिदीना फीहा, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वनीमा अजरुल आमिलीन, और क्या ही अच्छा अजर है अमल करने वालों का। कद खलत मिन कबलिकुम सुनन, तुमसे पहले भी कुछ जो है वो तरीके बर्ताव में आ चुके, यानी कुछ लोग ऐसे गुजरे जिनकी सुन्नत गुजर चुकी। फसीरू फिल अर्ज, बस चलो जमीन पे सैर करो। फंजरू कई फकाना आकिबातुल मुकज्जिबीन, बस देखो कैसा अंजाम हुआ जुठलाने वालों का। हाजा बयानुल लिन्नास, ये लोगों को के लिए बयान है। वहुदन व हिदायत है। वो मोइज़ातुल लिलमुत्तकीन, और नसीहत है मुत्तकियों के लिए। वला ताहिनु वला तहज़नु, और ना सुस्ती करो और ना गम खाओ। व अंतुल अलाउना, और तुम ही सरबुलंद रहोगे। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। इन यमससकुम करहुन, और अगर तुम्हें पहुंची कोई तकलीफ, फकद मस्सल कौमा करहुन मिस्लुहु, तो उनको भी ऐसी, वो भी तकलीफ पा चुके हैं ऐसी ही। वतिल का वतिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, और ये दिन है जो हम गर्दिश में रखते हैं लोगों के लिए, यानी बारियां हैं लोगों की, कभी किसी पर कोई दिन आ जाता है, किसी पर कोई आ जाता है। वलियालम अल्लाहुल्लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह जांच ले ईमान वालों को, यानी कि अल्लाह अगर किसी को तकलीफ देता है तो उसमें भी उसकी आजमाइश है, और अगर उसको खुशी देता है तो उसकी उसमें भी उसकी आजमाइश है। यानी ये दिलों का ऊपर नीचे होना फिरना, ये ईमान वाले की यानी ये एक आजमाइश है, और अल्लाह इससे जांच करता है कि कौन मेरा बंदा हर हाल में मेरा शुक्र करता है। वलियअलमल्लाहुल्लज़ीना आमनू वयत्तखिज़ मिनकुम शुहदा, और तुम में से कुछ लोगों को शहादत का मर्तबा दे। वल्लाहु ला युहिब्बुज़ ज़ालिमीन, अल्लाह जालिमों को दोस्त नहीं रखता। और ये दिन क्यों आते हैं? वलियुमहसिल्लाहु लज़ीना आमनू, ताकि अल्लाह निखार दे ईमान वालों को। वयमहकल काफिरीन, और काफिरों को रुसवा कर दे, मिटा दे। अम हसिबतुम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि अन तदखुलुल जन्नह, तुम यूं ही जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअलमिल्लाहुल्लज़ीना जाहदू, अल्लाह ने भी गाजियों का इम्तिहान नहीं लिया। मिनकुम व यअलमस साबिरीन, और अभी सब्र वालों की आजमाइश नहीं की। वलक़द कुंतुम तमन्नाउनल मौता मिन क़ब्ली, और तुम मौत की तमन्ना किया करते थे इससे पहले। अन तल्क़ाहू, उसके मिलने से पहले। फ़क़द रअयतुमूहु व अंतुम तंज़ुरून, तो वो तुम्हें नजर आई आंखों के सामने। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन, और नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर अल्लाह की तरफ से रसूल। कद तहकीक खलत मिन क़ब्लिहि रसूल, आपसे पहले और भी रसूल आए दुनिया में जो गुजर चुके। अफा इन माता, बस अगर आप इंतकाल फरमा जाएं, औ कुतिला कुतिला, या शहीद कर दिए जाएं, और औ कुतिलन कलब तुम अला आकाबिकुम, तो क्या तुम अपने एड़ियों के बल फिर जाओगे। वमन यनकलिब अला आकिबैही, और जो कोई उल्टे पांव फिर जाए। फलन यदुर्रल्लाह शैयन फला यदुर्रल्लाह शैया, तो अल्लाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा। फसाया यजजिल्लाहु शाकिरीन, पसंद करीब अल्लाह शुक्र करने वालों को जजा देगा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, तो हजरत उमर फारूक जैसे सहाबी भी तलवार लेकर खड़े हो गए कि अगर किसी ने कहा ना कि मोहम्मद रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए तो मैं सर कलम खाती। तो उस वक़्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने फरमाया था कि लोगों सुनो, जो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, यानी कि जो तो अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह तो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। और जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूजा करता था, यानी ये, तो वो तो दुनिया से चले गए। इसका मतलब ये है कि हर कुल्लु नफ्सुन ज़ाइक़ातुल मौत, कि जैसे समझ लें कि कोई बहुत अपना ईमान वाला आपका रहबर, आपका मुर्शिद, आपका रहनुमा दुनिया से चले जाए तो आप पीछे मुड़ जाएंगे इस्लाम से? नहीं, उसकी तालीमात को लेकर आगे जाएंगे। तो ये फरमाया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से ज़ाहिरी पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन उनका कुरान हमारे अंदर मौजूद है। उनके बाद कोई नबी नहीं है। उनका नूर नबूवत सुबह क़यामत तक चमकेगा। जो कोई भी दीन में इस्तिकामत इख्तियार करेगा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैजान पाएगा। और सुबह क़यामत तक ये नूर ये नूर बांटा जा रहा है।
وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ، اور کوئی جان جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر مار نہیں سکتی، الا باللہ الا باذن اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے یعنی کہ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، کتابن موجلا، یہ سب وقت لکھ رکھا ہے اس نے، ومن یرید ثواب الدنیا، اور جو کوئی ثواب دنیا چاہتا ہے، نوتیھا منہا، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، ومن یرید ثواب الآخرہ، اور جو آخرت کا ثواب چاہتا ہے، نوتیہ منہا، تو ہم اس کو دے دیتے ہیں، وَسَنَجْزِل نز وَسَنَجْزِی الشَّاکرین، اور پس ان قریب ہم جزا دیں گے شکر کرنے والوں، وَکَأَیٍّ مِّن نَبِیٍّ، اور کتنے ہی نبی، قاتل، جنہوں نے جہاد کیا،
इस तुसइदूना वला तलऊना अला अहदिन व रसूलु, और जब तुम मुंह उठाए चले जाते थे और पीठ फेर कर किसी को न देखते थे, वर रसूलु यदऊकुम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदऊकुम फी उखराकुम, तुम्हें पीछे से बुला रहे थे, फा असाबकुम गम्मम बिगम्मिन, बस पहुंचा तुम्हें गम पर गम, लिकई ला तहज़लु, और लिकई ला तहज़नु अला मा फातकुम, ताकि तुम मत गमगीन हो जो तुमसे चला गया, वला मा असाबकुम, और जो अफ्तार तुम पर पड़ी, वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, और अल्लाह जो तुम करते हो उसकी खबर रखने वाला है। ये गज़वा उहद की बात है, जब मुसलमानों की हवा उखड़ गई थी। इस तरह हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दस्ते को मुकर्रर किया था कि जंग हो, फतह या शिकस्त हो, यहाँ से हिलना नहीं है, तो ये जगह नहीं छोड़नी। लेकिन मुसलमानों को शुरू में ही फतह हो गई, तो उन्होंने जो सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन थे, बहरहाल उनसे एक ये लग़ज़िश हो गई, वो उतरे, और बाज़ रवायात में है कि माल गनीमत जो है वो समेटने लगे, लेकिन उनके शान के मुताबिक माल गनीमत तो नहीं है, लेकिन शैतान का बहरहाल वहां वार चला, और उनके दिल के ये अंदर हो गया कि हम फतह तो पा ही ली है। तो लेकिन हज़रत खालिद बिन वलीद उस वक्त मुसलमान नहीं थे, वो बड़े जीरक थे। वो जब चले गए तो उन्होंने वापस मुड़ के देखा कि दोबारा से आ गए। उन्होंने कहा कि वो दर्रा जो है वो खाली ना हो। उन्होंने आके देखा तो वहां बाकी मुसलमान नहीं थे। हजरत मसअब बिन उमैर थे जिनको मुकर्रर किया था, उन्होंने उनको शहीद किया, और उसके बाद दोबारा से हमला किया, और यूं मुसलमान 70 सहाबा कराम शहीद हुए। एक जीती हुई जंग थी जो है, और हुक्म अदूली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आपने फरमाया था। हमें ये इसलिए बताया जा रहा है कि हर हाल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की इताअत, ये सबक है। और आप वसल्लम यानी कि उनको पीछे से बुला रहे थे कि देखो शैतान ने ये पहाड़ आदि के आप वसल्लम शहीद हो गए, तो मुसलमानों के अंदर रही से कसर भी ताकत खत्म हो। तो आप वसल्लम ने फरमाया देखो इधर मैं इधर हूँ। तो जब आप वसल्लम की आवाज सुनी तो दोबारा से सारे मुसलमानों के अंदर जोश आ गया, और वो पलटे और उन्होंने फिर फतह पाई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो भी हालात हों, आप वसल्लम का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। फरमाया सुम्मा अनज़ला अलैकुम मिन बादिल गम्मी, उसके बाद नाज़िल किया तुम गम के इस गम के बाद अमानतन अमन, नआसन यख्शा ताइफातुम मिनकुम, कि तुम्हारी एक जमात को घेरे हुए थी, व ताइफातुम कद अहम्मतहुम अनफुसहुम, और एक गिरोह अपनी जान की उसको पड़ी हुई थी, यज़ुन्नुना बिल्लाहि गैरिल हक़्क़ि ज़न्नल जाहिलिया, और वो अल्लाह पर बेजा गुमान कर रहे थे जाहिलियत के गुमान जैसा। यकूलूना, वो कहते थे हल लना मिनल अमरी मिन शैइन, क्या इस काम में कुछ हमारा भी इख्तियार है। कुल फरमा दे इन्नल अमरा कुल्लहु लिल्लाह, सबका सब इख्तियार तो अल्लाह का है। युख्फूना फी अनफुसिहिम मा ला यब्दूना लक, अपने वो और जो तुम पर वो अपने दिलों में छुपाते थे जो तुम पर जाहिर नहीं करते थे। यकूलूना लौ काना लना मिनल अमरी शैउन मा कुतिलना हाहुना, वो कहते थे अगर आज हमारे लिए कोई इख्तियार होता तो हम यहाँ ना यूं मारे जाते। ये काफरों की, ये मुनाफिक थे। जब भी उनको तकलीफ पहुंचती तो अफसोस करने लग जाते हम क्यों आए हैं, और जब मुसलमानों को माले गनीमत मिलता तो कहते काश हम भी चले जाते। किसी हाल में मुतमिन नहीं थे। फरमाया कुल फरमा दीजिए लौ कुंतुम फी बियूतिकुम, अगर तुम अपने घरों में भी होते, लबारज़ल्लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल कत्लु, तो निकल खड़े होते वो लोग जिनके ऊपर मरना मुकद्दर था, इला मजाजिहिम, अपने घरों से अपनी कत्लगाहों तक निकल आते। वाली यब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, ताकि अल्लाह जांचे जो तुम्हारे सीनों में है। वाली युमहिसा मा फी कुलूबिकुम, ताकि वो खालिस कर दे जो तुम्हारे दिल, यानी कि वो ऐसी आजमाइश करे कि खरा और खोटा अलग-अलग हो जाए। वल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह ताला सीनों की बातों को जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी, और बेशक जो तुम में से फिर गए जिस दिन दोनों फौजें आपस में मिली। इन्नमा इस्तज़ल्लहुमुश शैतानु, कि उन्हें शैतान ने लग़ज़श दी, बिबाज़ि मा कसबू, उनके बाज़ करतूतों की वजह से। वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ने दरगुजर किया उनसे। इन्नल्लाहा गफ़ूरुन हलीम, बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला और हिलम वाला है। वो जल्द नहीं पकड़ता, फरमाया वो बड़ा ही हिलम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तकूनू कल्लज़ीना कफ़रू, ए ईमान वालों काफिरों की तरह न हो जाओ। वक़ालू लिइख्वानिहिम,
جب وہ اپنے بھائیوں کی نسبت کہا انہوں نے کہ اذا ضربوا فی الارض، جب وہ سفر میں تھے یا جہاد میں تھے، او کانوا غزا یا جہاد میں تھے، لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے پاس ہوتے، ما ماتوا وما قتلوا، تو نہ تم مرتے اور نہ مارے جاتے، لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، اس لیے کہ اللہ ان کے دلوں میں اس کا افسوس رکھے، واللہ یحیی و یمیت، اللہ ہی مارتا ہے اور اللہ ہی زندہ کرتا ہے، واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو وہ دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ منافق کہتے کاش ہم نہ جاتے، کاش اگر کوئی نقصان ہوتا، یعنی یہ آج کے دور کا مسلمان بھی ایسا کہتا ہے کاش میں یہ نہ کرتا تو نہ ہوتا۔ یہ جو کل بھی میں یہ بات کرتی کہ کاش جو کام بھی ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کے یا اس کے علم میں آئے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اپنی راہ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس راستے میں پھر بھی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر اختیار کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے، اور یہ پختہ یقین رکھنا چاہیے جو حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ساری دنیا مل کر اگر تم نقصان دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا کاتب تقدیر نے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا مل کر تجھے نفع دینا چاہے تو اتنا ہی دے سکتی ہے جتنا کاتب تقدیر نے تیرے لیے لکھ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابن عباس، قلم اللہ کا قلم لکھ کر خشک ہو چکا ہے، ہماری تقدیریں لکھی جا چکی ہیں۔ اب یہاں یہ کوشچن آپ کریں گی کہ پھر ہم جب سب کچھ لکھا جا چکا ہے لیکن دعا کا اختیار ہمیں دے دیا گیا ہے، دعا ہمیں تھما دی گئی ہے، اور اس یقین کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت ما یشاء، اللہ جو چاہے مٹاتا ہے، جو چاہے سب کرتا ہے، کیونکہ وہ قادر اور قدیر ہے۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ باتیں جو ہے نا کاش یہ نہ ہوتا یہ ہوتا، یہ بشری کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں، بہرحال ہم بشر ہیں، لیکن پھر جلدی سے ہم واپس آ جانا چاہیے، کسی بھی ایسے لمحے کی گرفت میں نہیں آنا چاہیے کہ جس سے ہمارے ایمان کے ضائع ہونے کا خدشہ ہو۔ آ جاتی ہے من حیث البشر، کمیاں کوتاہیاں، اسی لیے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے آخر تک کھلا رکھا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کمزور بھی ہیں، جلد باز بھی ہیں، گھبرانے والے بھی ہیں، تکلیف میں لمبی چوڑی دعائیں کرتے ہیں، اور جب خوشی ہوتی ہے تو آپ سے باہر ہو کر مجھے بھول جاتے ہیں، لیکن وہ معاف کرتا ہے، اور وہی ہے اس لائق کہ وہ معاف کرے، اور وہی ہی معاف کر سکتا ہے، اور کوئی نہیں معاف کر سکتا، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ آیت نمبر 157، چوتھا پارہ، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بے شک اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ، اور متم لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یا مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی بخشش اور رحمت ان کے سارے دن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر، یا تم غازی بنو گے یا شہید ہو جاؤ گے، دونوں حالتوں میں ایمان والا کامیاب ہے۔ وَلَئِن، پھر آگے، وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم مرو یا مارے جاؤ تو اللہ ہی کی طرف اٹھنا ہے تم نے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ، اے محبوب اللہ کی رحمت خاص سے آپ ان کے لیے نرم ہیں، نرم دل۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ تند مزاج ہوتے، سخت دل، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو آپ کے ارد گرد سے دوڑ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، بس معاف کریں ان کو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کی شفاعت کریں، بخشش طلب کریں ان کے لیے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور کاموں میں ان سے مشورہ لیں، فَإِذَا عَزَمْتَ، اور جب آپ پختہ ارادہ کر لیں، فَتَوَکَّلْ اللہ، تو پھر اللہ ہی پر بھروسہ کریں، ان اللہ یحب المتوکلین، توکل کرنے والوں کو، بہت بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص کہہ کر ہم سب کو یہ کہا گیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کی سفارش کرو، ایک دوسرے سے مشورہ لو، اور جب کام کرنے کا ارادہ کر لو پھر اس کے بعد اللہ پر پورا بھروسہ کرو، اور یہی مومنین کا طریقہ کار ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ وَإِن يَنْصُرْكُمْ وَإِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اور اگر وہ تمہیں چھوڑ دے، استغفر اللہ، اگر تمہیں رسوا کر دے تو کون تمہاری مدد کرے اس کے بعد؟ اسی لیے کہتے ہیں جس کے ساتھ رب ہے اس کے ساتھ سب ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ،
اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. وما کان لنبی ان یغل، نبی پر یہ نہیں ہے کہ وہ کچھ چھپا لے، خیانت نہیں کر سکتا نبی. ومن یغلل، اور جو کوئی ایسا فرض محال کرے، اول تو کر ہی نہیں سکتا. یاتی بما غلا یوم القیامہ، تو جو بھی چھپائے گا اپنے اندر وہ لے کر آئے گا قیامت والے دن، یعنی ظاہر ہو جائے گا. ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر جان کو اس کی کمائی پوری پوری دی جائے گی. وہم لا یظلم، اور ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا پس وہ جو اللہ کی مرضی پر چلا، کمم با بسخط من اللہ، کیا اس جیسا ہو سکتا ہے جس پر اللہ کا غضب ہوا؟ کبھی بھی نہیں. وما واہم جہنم، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المصیر، اور نہایت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ. ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کے درجے ہیں. واللہ ببصیر بما یعملون، جو تم کرتے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر. اس واسطہ فیہم رسول، جب مبعوث فرما دیا اپنا رسول خاص. اللہ اکبر، الحمدللہ. من انفسہم، جو انہی میں سے ہے. قرآن میں ایک اور جگہ ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. جب اللہ نے انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دیا. یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پر تلاوت کرتا ہے اللہ کی آیتوں کو. وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے. سبحان اللہ. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے. والحکمہ، اور حکمت سکھاتا ہے. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے وہ گمراہی میں تھے، کھلی گمراہی میں. عرب کے لوگ، جیسے پیچھے بھی ابھی ہم نے پڑھا کہ وہ گرنے ہی والے تھے. ایک ایسی وادی، ایک سمجھ لیں کہ ایک کھائی میں گرنے والے تھے، بالکل کنارے پر کھڑے تھے. لیکن اللہ کی رحمت نے بچا لیا. کیا کیا؟ اپنا پیارا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں نبی بنا کر بھیج دیا. تو یہ صبح قیامت تک کے لیے ہم سب کے لیے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر جو ہے ظاہراً پردہ فرما گئے ہیں، لیکن وہ موجود ہیں. ان کا قرآن موجود ہے، ان کی سنتیں موجود ہیں، ان کا فیضان جاری ہے، ان پر اللہ کی ہر آن رحمتیں برستی ہیں. جو ایمان والا اپنے آپ کو نبی کے قدموں تک لے جائے گا، وہ اس نبوت کی کرنوں کا حقدار ٹھہرے گا. ہر آن برس رہی ہیں مومنین پر رحمتیں، اور سبز گنبد کا اجیالہ اور نور بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے. اور وہ اللہ کے حکم سے ان کی، سمجھ لے کہ ایمان والوں کے لیے، ہم سب کے لیے وہی تو سہارا ہے. تو فرمایا کہ اس سے پہلے تم جاہل تھے، تم گرنے والے تھے، تم تباہ تھے، لیکن تم پر ترس کھا لیا اللہ نے اور اپنا محبوب تمہیں عطا فرما دیا. تو اس کا شکرانہ کیا ہے؟ یہ روزے ہیں ہمیں ملے، یہ انہی کے صدقے ملے ہیں. ہر دن ہمیں ان کے صدقے ملا ہے. یہ جو جان جو ہے جسم میں، یہ بھی ان کے صدقے. منہ میں جو زبان ہے وہ بھی ان کے صدقے. ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے. سب کچھ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. لیکن اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اللہ کا عرفان حاصل کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر، ان کی تعلیمات پر عمل کر کے. اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیھا، کیا جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچے، تحقیق تم بھی پہنچا چکے ہو ان کو ایسی تکلیف. کل تم ہننا ھذا، تو کہنے لگو کہ یہ کہاں سے آئی. کل فرما دیں ہوا من عند انفسکم، یہ تمہاری اپنی جانوں کی طرف سے آئی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. یہ اوور آل یہ اصول ہے کہ مسلمان کو کہا گیا تمہیں جو بھی تکلیف پہنچے تم کو کہو کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کے باعث ہے، لیکن اگر نیکی اور رحمت پہنچ جائے تو کہو میرے اللہ کا فضل ہے. وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جس دن پہنچی تمہیں تکلیف جب دو جماعتیں آپس میں ملی. فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین، تو یہ اللہ کی حکم سے تھا اور تاکہ اللہ ایمان والوں کو جان لے. وليعلم الذین نافقوا، اور وہ جانچ لے منافقوں کو بھی. وقیل لهم تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ، اور جو منافق ہوئے ان سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑو. اب ادفعوا
या दुश्मन को हटाओ। कौलू कहने लगे लो नालमु क़ितालन लत्तबअनाकुम, बोले अगर हम लड़ाई होनी जानते तो जरूर हम तुम्हारे साथ देते। हम लिल कुफ्रि यौमइदिन अक़रबु मिनहुम लिल ईमान, और उस दिन ज़ाहिरी ईमान की बनिस्बत वो खुले कुफर से ज्यादा करीब है। यक़ूलूना बि अफ़वाहिम मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, वो मुंह से वो कहते हैं जो उनके दिलों में नहीं। वल्लाहु अअलमु बिमा यक्तुमून, और अल्लाह उनका जो भी छुपाते हैं खूब जानता है। अल्लज़ीना क़ालू लिइख़वानिहिम, और जिन्होंने अपने भाइयों के बारे में कहा वाका वाका आदू वाका आदू लो अताऊना मा कुतिलू, और आप बैठ रहे कि वो हमारा कहा नहीं, और कि वो हमारा कहा मानते। माँ कुतिलू तो वो न मारे जाते। यानी वो लोग जिन्होंने अपने भाइयों के बाबत ये कहा कि अगर वो भी घर में बैठे रहते, जंग में ना जाते तो ना मरते। कुल फरमा दीजिए फदराउ अन अनफुसिकुमुल मौत इन कुंतुम सादिकीन, अपने अपने आप से मौत को हटाकर तो दिखाओ अगर तुम सच्चे हो। कोई नफ्स नहीं ना हटा सकता अपने से मौत। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, और जो अल्लाह की राह में मारे गए उनको मुर्दा ना करो, कहो बल अहयाउ इंदा रब्बिहिम युरज़क़ून, वो जिंदा है, अपने रब के पास रिज़्क दिए जाते हैं। फारिहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, बड़े ही खुश हैं जो उनको अल्लाह ने दिया है अपने फजल से। व यस्तबशिरून बिल्लज़ीना, और वो खुशियां मना रहे हैं उन लोगों के अपने बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, अपने पिछलों की जो अभी उनसे नहीं मिले। अला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि उन पर ना कुछ अंदेशा है ना कुछ गम है। यानी शहीद जिंदा है, अल्लाह की तरफ से खाया पिलाया जाता है, और वो खुश है वहां। और ये कि अभी जो खुशियां मना रहे हैं अपने पिछलों की, और वो यानी कहने का मकसद ये है कि जब एक नबी का उम्मती शहीद जिंदा है तो नबी की हयात के बारे में आप खुद ही सोच लें कि वो कितनी आला दर्जे की होगी। फरमाया कि यस्तबशिरूना बिनेमत मिनल्लाहि व फज़लन, वो खुशियां मनाते हैं अल्लाह की नेमत और फजल की। व अन्नल्लाह ला यज़ीउ अजरल मोमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनीन के अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि व रसूल, मोमिन कौन, जिन्होंने कहना माना अल्लाह और उसके रसूल का, मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ब, जब उनको जख्म पहुंच चुका था। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, उनके नेकूकारों और परहेजगारों के लिए वत्तक बड़ा सवाब है। वत्तको अजरुन अजीम, और अजर अजीम है। अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु, वो लोग कहा जिनको लोगों ने, इन्नन नासा क़द जमअू लकुम, तहकीक लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बड़ा माल जमा किया है। फख्शौहुम, उनसे डरो। फज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान और बढ़ गया। वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमें तो अल्लाह काफी है और हमारा बेहतरीन कारसाज है। यानी उनको डराया गया कि दुश्मन की तादाद बहुत बड़ी है, डर जाओ। वो कहते नहीं, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, हमें हमारा अल्लाह काफी है। तो ये जो हम पढ़ते हैं ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूअन, तो पलटे अल्लाह के एहसान और फजल से कि उन्हें कोई बुराई ना पहुंची। वत्तबऊ रिज़वानल्लाह, और अल्लाह की खुशी पर चले। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, और अल्लाह बड़े ही फजल वाला है। इन्नमा ज़ालिकुम शैतान, वो तो शैतान है। युखव्विफु औलियाहु, वो अपने दोस्तों से धमकाता है। फला तखाफूहुम, बस उनसे ना डरो। वखाफूनी, और मुझसे ही डरो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम ईमान वाले। वला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फिल कुफ्र, और ए महबूब तुम उनका कुछ आप उनका कुछ गम ना करें जो कुफर में पर दौड़ते हैं। इन्नहुम लन यदुर्रुल्लाह शैया, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। युरीदुल्लाहु, चाहता है अल्लाह के, अल्लाह यजअल लहुम हज़्ज़न फिल आखिरा, कि अल्लाह आखिरत में उनका कोई हिस्सा न रखे। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए बड़ा अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरवुल कुफ्र बिल ईमान, वो लोग जिन्होंने कुफर खरीद लिया हदायत के बदले। लन यज़ुर्रुल्लाह शैया, वो अल्लाह के कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वला यहसबनल्लज़ीना कफरू, मत गुमान करें काफिर लोग, अन्नमा नुमली लहुम खैरुल लिअनफुसिहिम, जो हम उनको ढील दे रहे हैं वो उनके लिए बड़ी अच्छी है। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, हम तो इसलिए उन्हें ढील देते हैं ताकि वो गुनाहों में और बढ़ जाएं। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब है। सच मा कान अल्लाहु लियज़रल मोमिनीना अला मा अंतुम, फरमाया नहीं है
माँ काना अल्लाह के अल्लाह छोड़ दे ईमान वालों को अला मान तुम इस हाल उनके हाल पर जिस पर वो है हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब यहाँ तक कि जुदा न कर दे गंदे को सुथरे से वमा कान अल्लाह लियुतलियाकुम अलल गैबी और अल्लाह की शान नहीं है कि वो मुतला करे अपने गैब पर वलाकिन अल्लाह यजतबी मिन रसूलिही मन यशा लेकिन अपने नबियों में से जिसको चाहता है जिसको चुन लेता है आमीनु बिल्लाही तो उसको गैब अता फरमा देता है। ये बहुत बड़ी आयत है। गैब का हकीकी असल इल्म अल्लाह के पास है लेकिन और अपने गैब का इल्म अपने रसूलों में से जिसको चाहता है चुनता है उनको अता फरमाता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही तो ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूलों पर व इन तुमिनु और अगर ईमान लाओ व तत्तकू फलकुम अजरुन अज़ीम तो तुम्हारे लिए अजर अजीम है। वला यहसबन अल्लज़ीना यबखलूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही और वो लोग ख्याल ना करें जो बुखल करते हैं जो उनको अल्लाह ने अता किया है कि वो बेहतर है उनके लिए बल हुआ शर्रुल लहुम बल्कि वो बदतर है उनके लिए सायुतव्वकून मा बखिलू अनकरीब उस माल का तौक पहनाया जाएगा उनको कहीं यौमल क़यामत वाले दिन यानी वो लोग जिनको अल्लाह ने बहुत दिया है लेकिन उसकी राह में खर्च नहीं करते ये उनकी बात हो रही है कि क़यामत वाले दिन उनका तौक जो बखीली बहुत बुरी बात है अल्लाह ताला ने बखील को बहुत नापसंद किया है जो ज़कात नहीं देते जो अल्लाह अल्लाह ताला ने जो मसारिफ बताए हैं इसके बावजूद को अल्लाह ने उनको बहुत दिया है लेकिन खर्च नहीं करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफहूम है कि जैसे ही बखील कब्र में जाएगा अस्तगफिरुल्लाह तो वो माल जो जोड़ जोड़ कर रखता रहा और वो जेवर जो इकट्ठा करता रहा और वो चीजें जो लोगों पर उसने नहीं यानी उनको ना दी तो वो उसके गले का तौक बन जाए कहते हैं कि कब्र में उतरते ही एक अजदहा उस पर मुसल्लत कर दिया जाएगा वो उसके गर्दन के इर्द गिर्द लिपट जाएगा और उसको उसके मुंह को पकड़ेगा और उसके कहेगा मुझे प्यार करो सारी जिंदगी तुम मुझे जमा कर करके रखते रहे तुमने इसको हकदारों को ना दिया क्योंकि कुरान पाक के अंदर है कि मालदारों के माल के अंदर लिस्साइलिन हक़ुल लिस्साइल साइलिन का हक है ये जो हम किसी को अगर देते हैं ना तो हम एहसान नहीं करते उनका हक अल्लाह ने इधर रखा है अल्लाह की मर्जी है ना किसी का उसने रिजक को जब बांटा तो उसने किसी का रिजक किसी के दस्तरखान पे रख दिया और उसको कहा कि भाई इसको तुम अपने हाथ से दे देना इसको चाहता तो वो खुद भी दे सकता था लेकिन वो दर्जे बढ़ाता है इस तरह कि क्या करता है जो सब्र करते हैं गरीब हैं उनके इसलिए दर्जे बढ़ते हैं कि उनको अल्लाह ने रिज्क नहीं दिया वापर लेकिन वो सब्र करते हैं और अल्लाह की खुशी में खुश रहते हैं और मालदार जब खर्च करता है तो माल खर्च करने से उसके दर्जे बढ़ जाते हैं तो ये हक होता है लिस्साइलिन सवाल करने वालों का अगर अल्लाह चाहता तो सब पर ये कर सकता है लेकिन उसने इसलिए ये बहुत बड़ी आयत है अगर मोमिनीन को कभी किसी के हाथ से खाना पड़ जाए ये मैं आपको बहुत प्यारी बात बता रही हूँ कि वक्त की गर्दिश होती है ना तो कभी ये दिन है जो अल्लाह ताला फेरता रहता है तो कभी ऐसा वक्त आ जाए कि कभी किसी के दस्तरखान में हमारा रिज्क हो और वो हम तक पहुंचा दे तो उसमें नशुक्री करने की बजाय या उसमें पनाह जरूर मांगे कि अल्लाह हमारा देने वाला हाथ कर दे लेकिन गिला ना करे अल्लाह ताला से उस वक्त भी यही मफहूम इसका है कि अल्लाह जिस हाल में जिसको रखे उसको शुक्र करना चाहिए लेकिन ये नहीं है कि वो हमेशा ही हाथ पांव तोड़ के बैठ जाए और कोशिश ना करे कि अब फलां लोग ही मुझे आकर खिलाए कोशिश ना तर्क करे लेकिन अल्लाह ने रिज्क उसका लिखा हुआ है हमें नहीं पता हमारा रिज्क कहाँ कहाँ है लेकिन हम ये तो दुआ कर सकते हैं अल्लाह वो रिज्क इज्जत इज्जत के साथ हमें ही अता फरमा दे और हमारे देने वाले हाथ कर दे तो इसलिए ये बहुत बड़ी आयत है मोमिनीन के लिए कि अल्लाह उनके दिलों पर आप देखें कि कोई बढ़ ना सका हजूर से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सल्लम से तो नहीं ना कोई बड़ा हुआ करोड़पति खरबपति भी हो जाए दुनिया सारी का इख्तिदार का मालिक हो जाए आप सल्लम से बड़ा बादशाह तो नहीं ना है तो उनके घर में भी कभी चूल्हा नहीं चलता कितने फाके थे जब आप सल्लम दुनिया से तशरीफ लेकर गए तो उनकी जर्रा एक यहूदी के पास गिरवी रखी हुई थी
सोचे ये मेरे लिए था, आपके लिए था, कि जब उम्मती को कभी ऐसा हाल आ जाए तो वो अल्लाह से शिकवे करने ना बैठ जाए, बल्कि अपने महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को देखे और सब्र करे। लेकिन दुनिया भी मांगो और आखिरत भी मांगो। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमें अपने हकूक पहचानने की तौफीक अता फरमाए, हमारे दिलों और हाथों की बुखिलियां दूर करे और हमें अपनी जनाबे खास से दे। दुआएं तो मांगते ही रहना है, मंगते का काम ही मांगना है, लेकिन अल्लाह देता है जब चाहता है, जैसे चाहता है, जिसको चाहता है। लेकिन अल्लाह हमें रुसवाइयों से बचाए। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। अलबत्ता तहकीक सुन ली अल्लाह ने बात उन लोगों की जो कहते हैं अल्लाह मुहताज है, हम गनी है। सनक्तुबु मा क़ालू, अनकरीब हम लिख लेंगे जो वो कहते हैं, व क़त्लहुमुल अंबिया बगैर हक, और अंबिया को नाहक शहीद करना भी हमने लिखा है, लिख लिया है, यानी लिख रहे हैं। व नक़ूलु ज़ूक़ू अज़ाबल हरीक़, और उन्हें कहा जाएगा चखो जलन का अज़ाब। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये जो तुम्हारे हाथों की कमाई है। व अन्नल्लाहा लैसा बिज़्ज़ल्लामिल लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। अल्लाज़ीना क़ालू, वो लोग जो कहते हैं, इन्नल्लाहा अहिदा इलैना, बेशक अल्लाह ने हमसे इकरार लिया है कि अल्लाह नुमिना ले रसूलिन, कि हम किसी रसूल पर ईमान ना लाए, हत्ता यातियाना बिकुर्बानिन, जब तक ऐसी कुर्बानी का हुक्म ना लाए, ताकुलुहु नार, जिसको आग ना खा जाए। कुल फरमा दीजिए, कद जाअकुम रसूलुम मिन कबली, तहकीक आ गए इससे पहले रसूल, बिलबय्यिनाति, रोशन दलीलों के साथ, व बिल्लज़ी कुल्तुम, और ये हुक्म लेकर आए जो तुम कहते हो। फालिमा कतलतुमुहुम इन कुंतुम सादिकीन, तो फिर तुम उनको क्यों कत्ल करते थे अगर तुम सच्चे हो। यानी काफिर के नित नए मुतालबात का रद्द करते हुए कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिलों के अंदर टेढ़पन है, तुम पहले नबियों को कत्ल क्यों करते थे, वो तो जाहिर जाहिर हर निशानी लेकर आए थे। फरमाया फाइन कज़्ज़बू का, बस अगर वो तुम्हें जुठलाएं, फकद कुज़िबा रुसुलन, तो तहकीक जुठलाया रसूलों को, मिन कबली का, इससे पहले, जाओ बिल बय्यिनात, वो आए खुली निशानियों के साथ, व ज़ुबुरी, और सहीफों के साथ, वल किताबिल मुनीर, और चमकती किताब लेकर। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, हर जान को मौत चखनी। व इन्नमा तुवफ़्फ़ूना अजूरकुम यौमल क़ियामा, और तुम्हारे बदले तो क़यामत ही को पूरे मिलने हैं। यहाँ जरूरी नहीं हकदार को पूरा मिल जाए, यहाँ जरूरी नहीं मेहनत करने वाला पूरी मजदूरी लेकर उठे। ये दुनिया है, आखिरत में पूरा पूरा मिलना है। ठीक है, यहाँ कोई लूट मार करके भी इज्जत कमा सकता है, और यहाँ कोई पाकीज़ा रिज़्क कमा कर भी रुल सकता है। ये कहने का मकसद। फरमाया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार, जो आग से बचा लिया गया ना, व उदखिलल जन्ना, और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, फकद फाजा, तहकीक वो कामयाब हो गया। मेरिट क्या है, दोजख से अल्लाह में बचा ले और अपनी जन्नतों में जगह दे, ये है हमारा मेरिट जो अल्लाह ने मुकर्रर किया। वमल हयात दुनिया इल्ला मताल गुरूर, सुनो दुनिया की जिंदगी तो धोखे का सामान है, और हम धोखे पे धोखे खा रहे हैं। देखें, लतुबलवुन्ना फी अमवालिकुम व अनफुसिकुम, और तुम्हारी जरूर आजमाइश होगी तुम्हारे मालों और जानों से। वला तस्माउन्ना मिनल लज़ीना उतुल किताब मिन कबलिकुम, और तुम सुनोगे। फरमाया कि जरूर तुम अगले किताब वालों और मुशरिकों से बहुत कुछ सुनोगे। जैसे आज कुफर कितना सर चढ़कर बोल रहा है और कितनी बातें कर रहा है इस्लाम को, आज मुसलमानों को किस कदर बातें सुननी पड़ी हैं। आप देखिए कि गजा के मुसलमानों को कितना वो जलील करके कहते हैं कि निकल जाओ, ये जानवरों से भी बदतर उनसे सलूक कर रहे हैं। तो फरमाया कि ये बातें होती रहेंगी जिंदगी में, बहुत सारी अज़ियत वाली बातें भी तुम उनसे सुनोगे। व इन तस्वीरों व तत्ताकू, अगर तुम सब्र करोगे और डरोगे, फ़इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल अमूर, तो ये बहुत हिम्मत वाले कामों में से है। इसको बेशक आप घर से लेकर हर जगह फिट कर सकते हैं इस आयत को, कि अगर तुम हक पर हो, तो तुम्हारा अगर कोई मजाक घर के अंदर से भी बेशक उड़ा रहा है, तो तुम उस पर सब्र करो, लेकिन अपना हक ना छोड़ो, किसी के कहने पर नेकी का रास्ता ना छोड़ो। ये है इस मफ़हूम। वाइद अखज़ अल्लाहु मिसाक़ल लज़ीना उतुल किताब,
اور یاد کرو جب اللہ نے عہد کیا ان سے جنہیں کتاب عطا کی، لا تبیننہ للناس، کہ تم ضرور اسے لوگوں میں بیان کر دینا، ولا تکتمونہ، نہ اس کو چھپانا، فنبذوہ وراء ظہورہم، تو انہوں نے اپنے سے پیٹھ پیچھے پھینک دیا، واشتروا بہ ثمنا قلیلا، اور اس کے بدلے مول تھوڑے لے لیے، فبئس ما یشترون، بہت ہی برا ہے جو انہوں نے خریدا۔ لا تحسبن الذین یفرحون بما آتاہم، مت گمان کریں وہ لوگ جو کہ بڑے خوش ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا، اور وہ ہر وقت یہ کہتے ہیں کہ ہماری ہر جگہ سے تعریف ہی ہو، بما لم يفعلوا، وہ ان کاموں پہ بھی جو انہوں نے نہیں کیا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، وہ یہ گمان نہ کریں کہ یہ چیزیں ان کو عذاب سے بچا لیں گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہی، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کے آنے جانے میں، بدلنے میں باہم نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اللہ دینا، جیسے بہت پیارا یہ سورۃ آل عمران کا آخری آیتیں ہیں، یہ تہجد کے وقت پڑھنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت فضیلت بتائی ہے، اور یہ بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں۔ اللہ دینا یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے بیٹھے اپنے پہلوؤں پر، وَيَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی پیدائش پر غور کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے کچھ بھی بیکار پیدا نہیں فرمایا، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، اللہ تو ہم سب کو آگ کے عذاب سے بچا لے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے رب ہمارے، بے شک جس کو تو نے نار میں، آگ میں داخل کر دیا، حقیقت میں اس کو تو نے رسوا کر دیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمینا منادی ینادی للایمان، اللہ ہم نے منادی کرنے والے کو، منادی کرنے والے کو جو ایمان کے لیے صدا لگا رہا تھا، ہم نے اس کو سنا کہ ان آمنوا بربکم، اپنے رب کے لیے ایمان لے آؤ، فآمنا، بس ہم ایمان لے آئے۔ ربنا، اے رب ہمارے، فاغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، وَكَفِّرْ سَیِّئَاتِنَا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دینا، اس طرح ہمارے گناہوں کو معاف کر دے کہ محو کر دے، نامہ اعمال سے ہی ختم کر دے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما، ہماری موت اچھوں کے ساتھ کر دے۔ اللہ اکبر۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اللہ ہمیں وہ وعدے دینا جو اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے کیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت والے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، اللہ تم اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم، اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی آمین کا موقع، کہ یہ دعا پڑھو تو ساتھ ہی آمین اللہ سن لیتا ہے، بس اللہ نے قبول کر لی ان کی، ربهم، ان کے رب نے ان کی دعاؤں کو، کہ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، تم میں سے کوئی عورت ہے یا مرد میں کسی عمل کرنے والے کا عمل ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک عورت پڑھ رہی ہے، ایک عورت نیکی کر رہی ہے، اللہ اس کا بھی عمل ضائع نہیں کرتا۔ ایک مرد ہے تو وہ ذمہ داریوں کے لیے فوقیت ہے، گھر چلانے کے لیے فوقیت ہے، باہر کی دنیا کو سروائیو کرتا ہے اس لیے درجہ ہے، لیکن نیک عمل کرنے میں مرد اور عورت کی تخصیص نہیں ہے۔ مرد تراویح پڑھ کے آتا ہے، مسجد میں پڑھتا ہے، عورت گھر میں پڑھ لیتی ہے، اللہ تعالیٰ تخصیص نہیں کرے گا، عورت کو بھی درجہ دے گا۔ عورت بچوں میں سے وقت نکال کے نیکی کرتی ہے، مرد کھلا اس کا اگر وقت ملتا ہے، اللہ تخفیف نہیں کرے گا، کمی نہیں کرے گا۔ فرمایا ہم ضائع نہیں کرتے کسی کا بھی، عمل کرنے والے کا عمل ہم ضائع نہیں کرتے، چاہے وہ کسی پہاڑ کے نیچے پڑا ہوگا۔ بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہو، اللہ اکبر، اس معاملے میں تم ایک ہو، ایک رینک ہے، عورت کا بھی مرد کا بھی۔ بس عورت نبی نہیں بن سکتی، ولیہ بھی بن سکتی ہے، لیکن رسولوں کو چننے والی بھی مائی۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم،
وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور میری راہ میں ستائے گئے، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا، اور لڑے اور مارے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ، البتہ میں ضرور دور کر دوں گا، سیئاتہم، ان سے برائیاں دور، گناہ دور کر دوں گا، وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور ضرور انہیں ان باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں ہیں، ثواب من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہے، واللہ عنده حسن المآب، حسن ثواب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ثواب۔ لا یغرنک، مت اے سننے والے تجھے دھوکے میں نہ ڈالے، تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان لوگوں کا پھرنا جو انہوں نے کفر کیا شہروں شہروں۔ آج مسلمان کفر کی شان دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں، ان کو کہا ہے نہ گھبراؤ، ان کے لیے کچھ نہیں ہے، متاع ان کے لیے تھوڑا فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کے لیے جہنم ہے، وبئس المہاد، بڑا ہی برا بچھونا ہے، بچھونا ہوتا ہے اوپر نیچے، استغفر اللہ۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، نزل من عند اللہ، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ سب نیکوں کے لیے ہے، سبحان اللہ، اللہم اجعلنا من وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے ایسے بھی ہیں، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ، کچھ کتابی ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور نازل کیا جو آپ پر اور جو ان سے پہلے، تو وہ ڈرتے ہیں اللہ سے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیتوں کو بیچا نہیں، یعنی وہ اہل کتاب جو مسلمان ہو جاتے ہیں صبح قیامت تک، وہ عیسائی یا یہودی جو مسلمان ہوں گے سب اس میں شامل ہیں، اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی وہ لوگ ہیں ان کے اجر ہے ان کے رب کے پاس، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب دینے، اس کی سریع الحسابی کیا ہے؟ حساب تو اس نے وہاں لینا ہے جب قیامت ہو، ہر ایک کی سریع الحسابی یہی ہے کہ اس کی موت اس کی سریع الحسابی، ادھر آنکھ بند ہوئی اور ادھر حساب شروع۔ یا ایھا الذین آمنوا، بہت ہی پیاری آیت ہے لیکن تفسیر کا وقت نہیں ہے، اے ایمان والو، آمنوا اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور نہ صرف یہ کہ صبر کرو، صبر میں استقامت کرو، دشمنوں سے آگے رہو، لیکن اس کا یہ مفہوم صبر ایسا ہو کہ اس میں ثابت قدمی اللہ تمہیں نصیب ہو، اور رابطو، اور باہم رابطے میں رہو، یہ ایک مسلمان اپنے پر دیکھے، لیکن میں دیکھوں آپ دیکھیں، صبر، اس کے اوپر استقامت، اور اللہ سے جڑے، صبر میں بہت ساری انوانٹیڈ چیزیں تو ہوتی ہیں جن پر صبر، تو اس میں استقامت کرو اور پھر جڑے بھی رہو، اور اگر ایز اے مسلم ہمیں کہا جائے کہ ایمان والوں کفر کے اگینسٹ مسلمانوں کی مدد کرو، جڑے رہو آپس میں، آپس کا رابطہ نہ چھوڑو، بدن کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو بخار سارے جسم کو ہونا چاہیے، یہ ہے اس کا، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو، اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اللہ اکبر، وخلق منها زوجها، اور اسی سے تمہارا جوڑا پیدا بنایا، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اور ان سے ہی یعنی اس جوڑے سے بہت سے مرد اور عورتیں کھلائے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، الذی، وہ اللہ، تساءلون به والارحام، جس کے نام پر تم مانگتے ہو، والارحام، اور رشتوں کا لحاظ کرو، ان اللہ کان علیم علیکم رقیبا، اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، بہت پیاری آیت ہے۔ وآت الیتام، یتیموں کو دو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدل الخبیث بالطیب، اور ستھرے کے بدلے گند نہ دو، ولا تاکلوا اموالہم اموالکم، اور ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا گناہ، جی، یتیموں کا، ہاں جی، یعنی کہ وہ چھوٹی، یتیم وہ ہوتا ہے جو بلوغت سے پہلے باپ کی شفقت سے محروم ہو جائے، ان کا مال اگر اپنے مال کے اندر لگایا ہے
تو جब माल बढ़ गया है तो ये नहीं कि उस वक्त 2 लाख लगाया था, जब वो बढ़ा हो गया 2 लाख देना है, तो जो अब रिसेंट अमाउंट है ना वो देनी है। ये बाप की बात है, बाप। वला ताकुलु अम्वालहुम इला अम्वालिकुम, और मत उनके माल अपने मालों के साथ मिलाकर खिलाओ खाओ। इन्नहु काना हुबन कबीरा व इन खिफ्तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो कि अल्लाह तुकसे तू फिल यतामा, कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो फन की हुमाता बाला को मिन निसाई मसना वसलासा व रुबा, तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आए, दो तीन, दो दो, तीन तीन और चार चार। अब ये है कि बाद लोग ऐसी बच्चियों से शादी कर लेते जिनका कोई वाली वारिस ना होता, लेकिन उनको उनके हुकूक नहीं देते, तो उनका माल हड़प कर जाता। कहा गया है कि शादी बेशक ना करो लेकिन उनका हक उनको दो। ठीक है, तो आजाद में से तुम शादी कर लो। तो ये लिखे ना, दो दो और तीन तीन और चार चार, चार तक तो है ना इजाजत। फाइन खिफ तुम, और अगर तुम्हें खौफ हो अल्लाह तादिलू के तुम अदल ना कर सकोगे, बराबरी ना कर सकोगे, फवाहिदातुन, फवाहिदातुन तो एक ही काफी है। ओ मा मलकत ईमानुकुम, या वो कनीजें जो तुम्हें पसंद आए, जालिका अदना अल्लाह तालू, और इससे तकरीब है कि तुमसे जुल्म ना हो। फ़आतुन निसा सदकातु सदुकातिहिन्ना निकला, और औरतों के मेहर खुशी से दो। फाइन तिबना लकुम अन शैइन, और कुछ माफ कर दे खुशी से कोई मेहर, नफ्सन फकलूहु हनियम मरिया, तो उसे खाओ रचता बैठा, यानी कि उसको खुशी से खा लो। वला तुतु सुफहाम वालकुम, और बेअक्लों को उनके माल ना दो। अल्लाती जाअला लकुम क़ियामन वरज़ुकूहुम फीहा, और जो तुम्हारे पास है, यानी और बेअक्लों को उनके माल ना दो जो तुम्हारे पास है, यानी ये नहीं कि यतीम का माल उससे वक़्त से पहले ही उसको वापस लौटा दो और वो उजाड़ के बैठ जाए। जब तुम देखो कि वो इस काबिल हो गया है तो फिर उसके माल उसके हैंड ओवर करो। वर्जुकुहुम फीहा, और उसमें से उनको भी खिलाओ, वक्सूहुम, और कपड़ा पहनाओ, वकूलू लहुम कौलन मारूफा, और उनसे अच्छी बात कहो। वबतलुल यतामा, और यतीमों को आजमाते रहो, हत्ता इज़ा बलगु निकाह, जब तक कि वो निकाह की उम्र तक न पहुंच जाए। फाइन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, और जब तुम उनको उनकी समझ को प्रॉपर पालो कि ये अब मैच्योर हो गए हैं, फदफउ इलैहिम अम्वालहुम, तो उनके माल उनको वापस कर दो। वला ताकुलूहा इसराफन व बिदारा, और उनके माल इसराफ के साथ और जल्दी जल्दी ना खाओ कि यकबरू, ये ना हो कि वो बड़े हो जाए, यानी उनके बड़े होने से पहले पहले ना उनके माल चट कर जाना। ठीक है, वमन काना गनियन, और जो कोई हाजत वाला हो, यानी वमन काना गनियन फल यस्ताफिफ, और जो हाजत जिसको हाजत ना हो वो यतीम का माल ना खाए। हाँ, जिसने यतीम की कफालत की है वो खुद हाजतमंद है, तो यतीम के माल से उतना का खा सकता है, थोड़ा बहुत, लेकिन ये नहीं कि याशियां करने लग जाए। वमन काना फकीरन, और जो कोई हाजतमंद है, फल जाकुल बिल मारूफ, तो वो अच्छे तरीके से खाए, मुनासिब तरीके से। फाइजा दफातुम इलैहिम अमवालहुम फशहिदु अलैहिम, और जब उनके माल यतीमों को वापस लौटाओ तो उस पर गवाह बना लिया करो। व कफा बिल्लाहि हसीबा, और अल्लाह काफी है हिसाब लेने वाला। लिर्रजालि नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानी वल अक़रबून, मर्दों के लिए हिस्सा इसमें से जो छोड़ जाए माँ बाप और कराबत वाले। वल निसाई नसीबु मिम्मा तरकल वालिदानी, और औरतों के लिए हिस्सा इसमें से जो छोड़ गए माँ बाप, बल अकरबून, और कराबत वाले। मिम्मा कल्ला मिनहु औ कसुर, थोड़ा हो या ज्यादातर का। नसीब मफरूजा, ये अंदाजा बांधा हुआ है अल्लाह ने। वाइदा खदर, ये अब विरासत की बात है। ठीक है, हिस्से हैं औरत का एक मर्द का दो, विरासत थोड़ी है या ज्यादा। वाइदा हजर किस्मत हो किस्मता उलुल कुर्बा, और जब बांटने के वक्त जो रिश्तेदार आ जाए, वल यतामा, और यतीम, वल मसाकीन फर्जुकुहुम मिनहु, तो उसमें से उनको भी दे दो। वकूलु लहुम कौलन मारूफा, तो अच्छी बात कहो। अच्छा, ये वो माल है, जैसे कोई अपने माल का बटारा कर रहा है, मौत का वक्त करीब आ गया है, तो या वैसे ही वो अपनी औलाद में बात तकसीम कर रहा है, तो उस वक्त कोई गुजरनादार और गरीब रिश्तेदार आ गए हैं तो उनको भी कुछ दे दो, इसका ये मतलब। बल यख्शल लजीना, और डरे वो लोग, लो तारकू मिन खल्फिहिम ज़ुर्रियतन ज़ियाफन, कि अगर वो भी अपने पीछे कोई कमजोर औलाद छोड़ दे, खाफू अलैहिम, तो उन्हें कितना खतरा, कितना खौफ होता उनके मतलब। फल यतकुल्लाह, बस अल्लाह से डरो। वल यकूलू कौलन सदीदा, और सीधी बात किया करो।
इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालन यतामा, बेशक वो लोग यतीमों का माल खाते हैं जुल्मन जुल्म से, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, स्वाय इसके कि नहीं वो अपने पेट के अंदर आग भर रहे हैं। वयस्लौना सईरा, और वो अनकरीब भड़कती हुई आग में डाले जाएंगे। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह वसीयत करता है तुम्हें तुम्हारी औलाद के बारे में। लिज़्ज़करा मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैनी, बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। फ़इन कुन्ना निसान फ़ौक़ स्नतैनी, बस अगर निरी लड़कियां हों तो अगरचे दो से ऊपर हो, फलहुन्ना सुलसा मा तरका, तो उनको तरका की दो तिहाई मिलेगी। वइन कानत वाहिदातन, और अगर एक ही लड़की है, फलाहन निस्फ, तो उसका आधा उसको मिलेगा और आधा करीब के रिश्तेदारों को मिलेगा। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर किसी की वारस अकेली बेटी है तो सारे ही उसको पकड़ा देते हैं, आधा है उसका और आधा रिश्तेदार, आधा उसका। हाँ जी। हाँ, फिर कोई मसला नहीं, फिर कोई मसला नहीं। वो हिब्बा होता है, फिर वो विरासत नहीं बनती, वो एक तोहफा है या जो भी है, लेकिन इतना तो नहीं कोई होता कि बहरहाल। वाली अब वही ही लिकुल्ली वाहिद मिनहुम सुदुसु, और मैयत के माँ बाप को हर एक को उसके तरके में से मिम्मा तरका इनकाना लहू वलदुन, यानी तरके में से छठा है अगर मैयत के औलाद हो। फ़इल्लम यकुन लहू वलदुन, फिर अगर उसकी औलाद ना हो, वह वारिसा हो अबवाहु, और माँ बाप वो छोड़े, फल उम्मिहि सुलुसु, तो माँ का तिहाई है। फ़इन काना लहू इख्वतुन, फिर उसके बहन भाई हो, फल उम्मिहि सुदुसु, तो माँ का छठा है। मिन बादी वसीयत, वसीयत के बाद, यूसी बिहा, वसीयत कर जाने वाले की, औदैन, और उसका कर्ज लौटाने के बाद। याद रखें, जब भी विरासत हो सबसे पहले जो दुनिया से जाने वाला है उसके कर्ज अदा होंगे, उसकी वसीयत के मामलात होंगे, उसका कर्ज अदा होने के बाद उसके बाद विरासत बढ़ेगी। ये नहीं है कि अपना अपना, कुछ लोग ऐसे करते हैं कि बाप का कर्ज है तो वो कर्ज बांट देते हैं साथ, लेकिन असूल इस्लाम का यही है कि टोटल जायदाद में से पहले कर्ज अदा किया जाए, उसके बाद विरासत तकसीम की जाए। फरमाया कि आबाउकुम व अबनाउकुम ला तदरूना अय्युहुम अक़रबु लकुम नफ़ा, तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे, तुम क्या जानो कौन तुम्हारे ज्यादा काम आएगा। अल्लाह फरीज़त मिन अल्लाह, ये हिस्सा बांधा हुआ है अल्लाह की तरफ से। इन अल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला हिकमत वाला। कुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियां जो छोड़ जाएं उनमें से तुम्हारा आधा है। इन लम यकुन लहुन्ना वलदुन, और कि अगर उनकी औलाद ना हो, फ़इन काना लहुन्ना वलदुन, और अगर उनकी औलाद हो, फलकुमुर रुबु, तो तुम्हारे लिए चौथाई है। मिम्मा तरकना, जो वो छोड़े, मिम बादी वसीयतिन यूसीना बिहा औ दैनिन, ये भी वही तरीका है कि वसीयत करने के बाद, पूरी करने के बाद और कर्ज अदा करने के बाद। वलहुन्ना रुबउ, और तुम्हारे लिए तरका में औरतों का चौथाई है। मिम्मा तरकतुम व इन लम यकुन लकुम वलदुन, अगर तुम्हारे औलाद ना हो तो, और हो फिर अगर तुम्हारे औलाद, वलहुन्ना रुबु, और तुम्हारे तरका में औरतों का चौथाई है। इन लम यकुल लकुम वलदुन, अगर तुम्हारे औलाद ना हो। इन काना लकुम वलदुन, और अगर तुम्हारी औलाद हो, फलहुन सुमना, तो फिर उनका आठवां हिस्सा है। मिम्मा तरकतुम मिन बादी वसीयतिन तुसूना बिहा और दैनिन, वही बात की वसीयत जो तुम कर जाओ वो पूरी करने के बाद और कर्ज देने के बाद। व इन काना रजुलन, और अगर कोई ऐसा मर्द, यूरसु कलालतन, वो ऐसा है जो कलाला है, जिसका तरका बढ़ रहा है। अब इमरातुन, या एक औरत ऐसी, वलहुन उखुन अखुन व उख्तुन वलिकुल्ली वाहिदुम मिनहुम सुदुसु, और वो, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बढ़ता हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ ना छोड़ा, और माँ की तरफ से उसका भाई या बहन है, तो उनमें से हर एक को छठा। फिर फ़इन कानू अक्सर मिन जालिक, अगर बहन भाई एक से ज्यादा है, फहुम शुरकाउ फिस्सुलुसी, तो वो सब तहाई में शरीक हैं। मिन बाद वसीयत यूसा बिहा और दैनिन, ये सब वसीयत और यानी कि वो कर्ज निकाल के है। गैर मुजारिन वसीयत मिनल्लाह, ना नुकसान पहुंचाया हो, जिसमें उसने नुकसान ना पहुंचाया हो, ये अल्लाह का इरशाद है। वल्लाहु अलीमुन हलीम, अल्लाह इल्म वाला और इल्म वाला है।
ये वसीयत ये होती है कि वो, और वसीयत जो है वो सिर्फ वो अपने हिस्से में से कर सकता है, अपने में से हिस्से में से वसीयत करके जाए कि ये फलां को दे दो। और वसीयत, अब ये इतनी अहम टॉपिक है कि इसके लिए बहुत टाइम चाहिए, लेकिन ये इंशाल्लाह फिर स्लोली इसको समझेंगे। लेकिन बात ये है कि एक तो वसीयत उसके अपने हिस्से में से होगी, वारसों के हिस्से से आप वसीयत नहीं कर सकते। वारिस तो तब बनेगा ना जब डेथ होगी, वसीयत तो पहले होगी। लेकिन जो असूल तरीका है ना कि जब देखें जो हकीकी वारिस उसके बच्चे ही है ना, आप तो वो करने वाला अगर अदल अल्लाह से डरेगा ना तो वो फिर भी अदल के तकाजे पूरे करे, लेकिन वो खुद उठा के सारा दे दे तो कोई उसको पकड़ तो नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ यही बात की जा रही है कि वो उसका यानी ये कर्जा अदा करने के, वो वसीयत जो कर्जा है, यानी बात होता है कि उसको उसने बात लोगों के बच्चों के इस मुलाजम बहुत संभाल लेते हैं तो वो मुलाजमों को या उनको दे जाते हैं तो वो पूरी की जाएगी, वसीयत तो पूरी ही होगी, वसीयत के बाद तरका फिर बनेगा तो वो बढ़ेगा। दिल का हदूद अल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। वमय्यत अल्लाह व रसूलहू व रसूलहू युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये तो आपको आता ही है। वमन यासिल्लाह व रसूलहू, और जो भी नाफरमानी करे अल्लाह उसके रसूल की, व यतअद्दा हदूदहू, और उसकी हदूद से तजावुज करे, युदखिलहु नारन, वो आग में दाखिल किया जाएगा, खालिदन फीहा, जिसमें हमेशा रहेगा, व लहुम अज़ाबुन मुहीन, उसके लिए रुस्वा का अज़ाब है। वल्लाती अल्फाहिशात मिन निसाइकुम, और तुम्हारी औरतें जो बदकारी करें, फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बाअता मिनकुम, तो उन पर 4 मर्दों की गवाही लो। फाइन शाहिदू, बस अगर वो गवाही दे, फामसिकुहुन्ना फिल बयूत, उनको उनके घरों में, ये भी मनसूख आयत है, तो उनको घरों में बंद कर दो। हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौता, यहाँ तक कि मौत उन्हें उठा ले। और यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, या अल्लाह उनकी कोई राह निकाल दे। वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फाज़ूहुमा, तो और तुम में से जो मर्द औरत ऐसा काम करें उनको इजाद हो। फ़इन ताबा, अगर वो तौबा कर ले, व असलाह कर ले, फ़ारिज़ुअनहुमा, तो उनका पीछा छोड़ दो। इन्नल्लाह काना तव्वाबुर रहीमा, अल्लाह बहुत तौबा को कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। इन्नमा तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सुआ, बेशक तौबा कबूल करना अल्लाह ने अपने फजल से लाजम कर लिया है उनके लिए, वो उन्हें जो नादानी में यानी कि गुनाह कर लेते हैं, सुम्मा यतूबूना मिन करीब, और फिर जल्दी से तौबा कर लेते हैं। उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, अल्लाह उन पर फिर आता है तौबा की, तौबा से यानी तौबा उनकी कबूल कर लेता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म वाला और हिकमत वाला है। वलैसत तौबा, और तौबा उनकी नहीं है, यामलून सय्याती, जो गुनाहों में लगे रहते हैं, हत्ता इज़ा हज़रा अहदुहुमुल मौत, यहाँ तक कि जब उनमें से किसी की मौत का वक्त करीब आ जाए, क़ाला, और वो कहे, इन्नी तुब्तुल आना, अब मैं तौबा करता हूँ, वलल्लज़ीना, और ना उनकी तौबा है, यमूतूना वहुम कुफ़ार, कि वो मर जाते हैं जिनके और वो कुफर में। कहने का मकसद ये है कि नज़ा का आखिरी वक्त शुरू होने से पहले पहले तौबा है। तौबा उनकी है, तौबा उनकी है जो जल्दी से, अगर गुनाह हो जाना बशरी तकाजे से, उस पर अकड़ते नहीं है। जैसे कि आप देखें कि फिरौन ने जब अजाब देख लिया था, और देख लिया था कि दरिया आपस में मिल रहा है, मैं डूबने लगा हूँ, तो उसने कहा था कि अब मैं तौबा करता हूँ। उस वक्त तौबा नहीं, जब व्यू बात खुलनी शुरू हो जाती है उस वक्त तौबा नहीं। उलाइका तदना लहुम अज़ाबन अलीमा, यही वो लोग हैं हमने जिनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार किया। अस्तगफिरुल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला युहिल्लु लकुम, ऐ ईमान वालों तुम्हें हलाल नहीं है कि औरतों के वारिस बन जाओ, अन तारिसुन निसा, करहा जबरदस्ती, वला तादुलुहुन्ना लितज़हबु बिबाज़ि मा आतैतुमुहुन्ना इल्ला, और औरतों को, वला तादुलुहुन्ना, और मत रोको उन्हें, लितज़हबु बिबाज़ि, ताकि तुम लो, मा आतैतुमुहुन्ना, जो तुम
को दे चुके हो, इल्ला अन यातीना, मगर ये कि वो आए, बिफाहिशातिन, बेहयाई का काम करें, मुबय्यना, वाज़ेह बेहयाई के साथ। अगर आती हैं तो फिर तो जबरदस्ती हो सकती है, यानी कि उनसे, लेकिन अदरवाइज क्या है कि उन औरतों के वारिस ना, जबरदस्ती ना बनो, और औरतों को रोको नहीं इस नियत से कि जो मेहर उनको दिया था उनमें से कुछ ले लो, मगर इस सूरत में कि सरी बेहयाई का काम करे। व आशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और उनसे अच्छा बर्ताव करो। फ़इन करिहतुमुहुन्ना, और अगर वो तुम्हें पसंद ना आए, फ़असा, बस हो सकता है, अन तकरहु शैया, कि तुम कोई चीज ना पसंद करो, वयजअलल्लाहु, और रख दी हो अल्लाह ने, फीही खैरन कसीरा, बहुत भलाई अल्लाह से, बहुत प्यारी अल्लाह की आयत है। वइन अरद तुम इस्तिबदाला ज़ौजिन मकाना ज़ौजिन, और अगर तुम एक बीबी के बदले दूसरी बदलना चाहो, एक को छोड़कर दूसरी के साथ निकाह करना चाहो, व आतई तुम इहदाहुन्ना, और तुम दे चुके हो उनमें से एक को, किंतारन, ढेरों माल, फला ताखुजू मिनहु शैया, तो उससे कुछ वापस लो। एक यानी कि तुम्हारी बीवी थी, बहुत अच्छा वक्त तुम्हारा गुजरा है उसके साथ, और ढेरों माल भी दे चुके हो, सारा कुछ ये है, लेकिन ये कि अब एक ऐसा कोई वक्त आ गया है कि तुम उसको छोड़ रहे हो, कोई भी मजबूरी हो सकती है, कोई भी वजह बनी है, तो अब जब तुम दूसरी शादी कर रहे हो तो पहली से सारी चीजें वापस ना लो, कि वो आखिर तुम्हारे एक वक्त का साथी रही है, और तुम्हारे साथ उसने अपनी जवानी बेहतरीन वक्त गुजारा है। तुम्हारा दीन कितनी नफ्सियात के साथ बात कर रहा है, देखिए, अताखुज़ूनहु बुहताना व इस्मन मुबीना, क्या तुम वापस लोगे झूठ बांधकर और खुले गुनाह के साथ। फकैफ ताखुज़ूनहु, और क्यों कर तुम वापस लोगे, वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, और जब तुम एक दूसरे के सामने बेपर्दा हो लिए, यानी कि तुम्हारा रिश्ता इतना डेवलप हो चुका, तो फिर भी तुम, यानी कितनी प्यारी बात की जा रही है कि इसी इससे पता चला कि मियाँ बीवी लिबास है, तो इस लिबास का ख्याल निकाह के दौरान भी रखा जाए, और जब अगर अल्लाह ना करे कभी किसी ने बीवी को छोड़ना है तो उस वक्त भी इस पर्दे का ख्याल रखा जाए। अखज़ना मिनकुम मिसाकन गलीज़ा, और बहुत तुम्हारे अंदर यानी वादे वईद हो चुके थे, गाढ़े अहद लिए थे तुमने एक दूसरे से, साथ मरने जीने की कस्में खाई थी, तो उन वक्तों का लिहाज करो, यानी इतने बदलिहाज ना हो जाओ कि छोड़ते वक्त बिल्कुल ही सर, यानी कहते नहीं आंखें सर पे रख ली, वला तनकीहू, और मत निकाह करो, माँ नकाह आबाउकुम मिनन निसाई, अपने इल्ला मा कद सलफ, मगर जो हो चुका, और बाप दादा की मनकूहा से निकाह ना करो मगर जो गुजर चुका, यानी कि जिस तरह जाहलियत के गुनाह माफ थे, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी हज पे, जो हज्जुल विदा पर फरमाया था कि सूद आज से हराम है, मगर जो बाकी बचते हैं वो अब छोड़ दो, पीछे कलम फेर दो और आगे चलो। तो इसी तरह यहाँ भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि जो हो चुका वो हो गया, वो तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन अब जब तुम्हारे कान में हदायत की बात पड़ गई है ना, तो अब हदायत इख्तियार कर। इन्नहु काना फाहिशातन व मक्ता, और बेशक ये बेहियाई और गजब का काम है, वसा सबीला, और बहुत ही बुरी राह है। हुरिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम पर तुम्हारी माएं हराम हुई, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, और बहनें, व अम्मातुकुम, और फुफियां, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अखी, और भतीजियां, व बनातुल उख्ती, और भांजियां, व उम्महातुकुम अल्लती, और तुम्हारी वो माएं, अरज़ानाकुम, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, व अखवातुकुम मिनर रज़ाती, और दूध की बहनें, व उम्महातु निसाइकुम, और औरतों की माएं, सास, वरबाइबकुमुल्लती, और उनकी वो बेटियां, फी हुजूरिकुम, जो तुम्हारी गोद में है, यानी जो बात का शादी होती है तो बीवी के साथ उसकी पहली बच्ची भी साथ होती है, वो भी हराम है तुम पर, ठीक है। तो ये बीवी की बेटी की बात हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। वरबाइबकुमुल्लती फी हुजूरिकुम, और उनकी बेटियां जो तुम्हारी गोद में है, मिन निसाइकुमुल्लती दखलतुम बिहिन्ना,
उन बीवियों से जिनके साथ तुम सोहबत कर चुके हो, जो तुम्हारे घर में बस चुकी हैं, उनकी भी बेटियां जिनके साथ तुम्हारा अभी रिलेशन कायम नहीं हुआ, उनसे तुम निकाह कर सकते हो। फ़इल्लम तकूनू दखलतुम बिहिन्ना, फिर अगर तुमने उनसे सोहबत ना की हो, फला जुनाहा अलैकुम, तो उन बेटियों में कोई हर्ज नहीं। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ी, और तुम्हारी नस्ली बेटियों की बीवियां, बेटों की बीवियां, ठीक है ना, बहुए, मिन अस्लाबिकुम, वअन, और ये भी हराम है कि अंत जमाऊ, कि तुम जमा करो बैनल उख्तैनी, दो बहनों को, इल्ला मकद सलफ, मगर जो हो चुका वो माफ है। एक वक्त में दो बहनें जमा नहीं कर सकते, एट ए टाइम दो बहनें निकाह में नहीं हो सकती, लेकिन एक अगर फौत हो जाए तो फिर दूसरी, मोस्टली ऐसे ही होता है। इन अल्लाह काना गफूरुर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, चौथा पारा हो गया। कोई इसमें कोई बहुत कुछ ऐसा था कि जो बयान करने के काबिल था, लेकिन वक्त जो है वो है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या रब्बी लकल हम्द कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिका, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अस्तगफिरुल्लाह, व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना मुहम्मदिन व अहलिहि, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार, वअदखिलना फिल जन्नति मअल अबरार, या अज़ीज़ व या गफ़्फ़ार या रब्बिल आलमीन। रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बि इग़फिर वरहम वअन्त ख़ैरुर राहिमीन। रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, फला तकिलनी इला नफ्सी तरफ़ता ऐन फ़ास्लिह शानी कुल्लुहु। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिका। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम, तबारकता या ज़ुल जलाली वल इकराम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीस, अल्लाहुम्मा इन्नी नऊज़ु बिका मिनल हम्मि वल हुज़्नि वल अजज़ि वल कसरि वल जुब्नि वल बुख़्लि व ग़लबति दीन व क़हरि रजाल। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अल्लाहुम्मा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या अरहमुर राहिमीन, हमारी आज की हाज़िरी को कबूल और मंजूर फरमा। दूर और नज़दीक के सुनने वाले अपनी शान के मुताबिक अजर अज़ीम अता फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार, हमने कुरान पाक पढ़ने की कोशिश की है, इसके ज़ेर ज़बर पेश अद मद यकीनन गलती हो गई, मानी मफ़हूम बयान करने में हो गई। जैसा अदब का हक था वैसा ना हो, जैसा समझने का हक था वैसे समझ ना सके, जैसा पढ़ने पढ़ाने का हक था वैसे हो ना सका, मुआफ़ फरमा देना। अल्लाह हमारी नीयत को कबूल फरमाए। अल्लाह हमारी नीयत को खालिस करके अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा, और इसका सवाब अपने या मेरे पाक परवरदिगार अपने खास जनाब से हम सबको अता फरमा। खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो हमारे मुर्शिद हैं, हमारे मुअल्लिम हैं, हमारा सब कुछ तो हमारा नबी है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, उनकी रूह खास को, रूह मुबारक को अता करते हुए उनके वालिदैन करीमैन को, जितने हुआ दुनिया में उन सब की अरवाह को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद को, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहहरात को, सहाबा सहाबियात को, तमाम शुहदा को, ताबईन तबा ताबईन, औलियाए कामिलीन को, जमील मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात मिनल अहयाए वल अमवात। ऐ अल्लाह, हमारे इन तमाम लोगों को भी जो कि ऐ अल्लाह जो लवारिस ठहरते हैं, लेकिन अल्लाह ईमान की हालत में दुनिया छोड़ के गए, गजा के शहीदों को भी, और हमारे तमाम प्यारों को, मुझ समेत आप सुनने वाले सबके प्यारों को इसका सवाब दर्जा बदर्जा अता फरमाओ।
اللہ ہمارا یہ تحفہ ان تک پہنچا دینا، اللہ یہ اس کو صدقہ جاریہ بنا دینا، اللہ ان کی قبروں میں روشنیاں بکھیر دینا، اللہ ان خد نگاہ ان کو جنتوں کے باغ عطا فرما دینا، من حیث البشر ان کی کمیاں لغزشی خطائیں معاف فرما دینا، اللہ ان کے درجات بڑھا دینا، اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بنا، اللہ ہم سب کو دین اسلام پر مضبوطی سے جم جانے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رمضان کا مہینہ ہے، گزرتا جا رہا ہے، اس کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا۔ اللہ ہمارے وقت میں عمر میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے معاملات میں بہتریاں پیدا کرنا۔ اس رمضان کا صدقہ، اللہ یہ رمضان آیا اور ہم نے اپنے آپ کو نہ بخشوایا تو یہ بہت بڑی حسرت ہے۔ اللہ یہ رمضان اس حال میں ہمارے ساتھ، ہم اس کے ساتھ ہیں، اللہ اس کی ایک ایک لمحے کی برکتیں ہمارے جسم پر، جان پر، عمل پر، روح پر، اولاد پر، مال پر، گھروں میں، ہر جگہ جاری و ساری فرما۔ اللہ اس کی برکتیں ایسی ہمارے اوپر نچھاور کر دے کہ یہ کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ ایسا استقامت عطا فرما دے کہ ساری زندگی پھر شیطان ہمیں پھسلا نہ سکے۔ اللہ ہمیں نفس کے دھوکے سے بچا، اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچا، ہمیں مالوں کی کثرت سے بچا، ہمیں مالوں کی، اولادوں کی کثرت سے، اللہ ان کے دھوکے سے بچا، ان کے شر سے ان کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا۔ اللہ ہمیں ہر لمحہ اپنی رحمت خاص میں جگہ عطا فرما، توبہ والی نگاہ سے ہمیں آن دیکھ۔ اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کے نصیب نیک فرما، بچوں کو امتحانوں میں کامیاب بامراد کر دے۔ اے اللہ ہمارے بال بچوں کے نصیب نیک فرما، جو شادی کی عمر میں پہنچ چکے، اللہ ان کے بہترین اسباب عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو عاشق مصطفیٰ کریم بنا، نسل در نسل عشق مصطفیٰ جاری و ساری فرما، ہماری اولادوں کو نیک بنا، 5 وقت کے نمازی اور روزے رکھنے والے بنا، اللہ اپنی نگاہوں کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بنا، اللہ ہماری سب کی اس آنکھ سے حفاظت فرما جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، ہمارے تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائیں عطا فرما۔ اے اللہ مسز خلیل کو بھی صحت عطا فرما، ہمارے مستقل ممبر ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما، تمام اے اللہ تمام فوت شدگان کی بے حساب بخشش فرما، اللہ ہاں جی، ہمیں میرا بھانجا بھی ہاسپٹل میں، اس کے راضی لیے بھی دعا اکٹھا کریں۔ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رحم الراحمین غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، جیسے تو نے بدر کے میدان میں فرشتے بھیجے تھے، اللہ غزہ کے مسلمانوں پر فرشتے بھیج دے، اللہ ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما۔ آمین۔ اللہ ہماری بے حسی مسلمانوں کی انتہا کو پہنچ چکی، ہمیں معاف فرما، ہمیں خواب غفلت سے بچا، اللہ آمین۔ ہمارے اوپر ہماری غفلت کی وجہ سے کہیں عذاب نہ آ جائے، ہمیں معاف کر دے، اللہ ہمیں اپنی رحمت کی جانب موڑ دے، اللہ ہمیں اپنے راستے کے مسافر بنا دے، اللہ ہمیں قرآن کی طرف ہمارا رخ سیدھا کر دے، اے اللہ ہمیں ہماری عمر میں برکت عطا فرما، کرم کر دے، ہمت طاقت عطا فرما، ہمارے بال بچوں کے نصیب نیک فرما، قیامت والے دن ہم سب کا اس حال میں اے اللہ تیرے روبرو ہوں کہ تو ہمیں کامیاب کر دے، ہمارے نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا فرما، ہمیں حشر کی سختی سے بچا، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ عطا فرما، اے اللہ ہمیں نیکوں کے ساتھ اکٹھا کر دینا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا کر اپنی جنتوں کے مالک بنا دینا، اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا پڑوس عطا فرمانا، حوض کوثر میں ان کے پیالے نصیب فرمانا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا في الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه وقاسم رزقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ۔
اللہ حافظ۔